All right. Yeah. So everything is fine. I hope my audio is fine. My video is better. My audio should be even better now. Yeah, I think we are good to go. So, and I hope that you are able to see my video as well at the top right corner. So, वहाँ पे you will be able to see the video. Audio should also be okay, I guess. So, I shifted to a different software now. ठीक है, better. ठीक है, चलो. So I think you should be able to see the screen, and to the left you should be able to screen the OneNote. On the right you should be able to see my talking face at the top right corner. तो ये सारी चीजें I think दिखनी चाहिए. So we can get going with the session now. ठीक है. Now just to reiterate, those of you who have joined us now, a couple of things before we start. One is, of course, there is this crash course that we had launched, and all the sessions are done, but the recordings are all available. So if you want to access only the recordings, they are available for 1,999 rupees. So you can use the coupon code that is there in the description box below. तो वहाँ से coupon code ले लेना, and you can apply that, and you will be able to get access to all the recordings. So last moment में अगर सारे के सारे concepts का एक overview चाहिए, या you want to touch upon a few concepts, few sections, तो वो सारी चीजें उसके अंदर मिल जाएंगी. You can have a look at that. सारे topics I have covered from basics से लेके advanced CET level तक का मैंने cover किया हुआ है. So I think it will be beneficial to you in case you are just looking at brushing things up, या theory में थोड़ा और help अगर चाहिए, तो it will be helpful to you. We also have the tests and the video lectures as a part of another package. तो वो अगर लेना है तो it will cost you 2,999 rupees. उसके अंदर we have only 4 logins left for the tests. So the last 4 people, or the first 4 people rather, who sign up for this will end up getting access. उसके बाद we will close this offering that we have. ठीक है. And finally तीसरी चीज जो बहुत important चीज है, that we are going to do a very interesting session next Sunday. So the short video, the teaser for that session should be up. तो एक बार चेकआउट कर लेना चैनल पे जाके, what exactly is that session going to be about, and you have to guess who the speaker is and what the session is going to be about. तो ये एक चीज कर लेना, participate in the discussion, and we will see जैसे जैसे days आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे we will share more details about the session. ठीक है. Now on that note, we'll start with the test start करने के पहले one small thing, for those of you who are joining me for the first time here for the live solving sessions. All right. Yeah, for the live solving session, if you are joining me for the first time, okay, this is from the last live solving session that we had. So this is today's one. ठीक है. So live solving के लिए अगर पहली बार join कर रहे हो, then what we generally do in this particular context is we basically look at the test for the first time. So I am also looking at for the first time. I have no idea what the test looks like, क्या question types है, क्या questions हैं, क्या cut off है, कुछ भी पता नहीं है. So I am also looking at it for the first time. So कैसे I react to surprises, या कहाँ पे I up my pace, and कहाँ पे मतलब I go a bit slower, कहाँ पे I think maybe for a bit, वो सारी चीजें you will be able to experience. And the second thing is in terms of strategy. So I follow a very simple strategy अगर देखते हो तो. So generally what I do is, मेरे लिए LR सबसे ज्यादा अनसर्टन वाला सेक्शन होता है, अनसर्टनिटी वाला सेक्शन होता है, जहाँ पे आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, कितना टाइम लगेगा, एंड सो ऑन. एंड आई जनरली टेंड टू गेट थोड़ा कैरिड अवे इन द LR सेक्शन, कि मेरे को पजल्स बैठ के करने में बहुत अच्छा लगता है, राइट. एंड बिकॉज इफ आई टेक आई गो फॉर इट टुवर्ड्स द एंड प्रेशर के अंदर, मे बी आई विल नॉट बी एबल टू डू जस्टिस टू सेक्शन, या फिर आई विल रश थ्रू इट, तो बहुत अच्छा स्कोर आएगा ये मुझे लगता नहीं है. दैट्स व्हाई आई टेंड टू टेक LR ऐसे हेड ऑन, एकदम हेड फर्स्ट. सबसे पहले LR स्टार्ट करेंगे, एंड उसके बाद आई विल टेक केयर ऑफ द अदर सेक्शन. दैट इज बेसिकली हाउ आई डू इट. सो LR में आई जनरली स्पेंड 60 मिनट्स. आई ट्राई टू अटेम्प्ट एज मेनी एज इज पॉसिबल. उसके अंदर ये सारे के सारे जेन्युइन अटेम्प्ट्स होते हैं. दैट गिव्स मी एन आइडिया कि पेपर का LOD क्या है. बिकॉज टिपिकली व्हाट हैपेंस, जो लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, टाइम मैनेजमेंट के वीडियो में, इफ यू हैवंट वॉच्ड इट एक बार देख लेना. बट उस टाइम पे, okay, audio can be louder. Let me just check once. I think I should be able to manage that. ठीक है. I think this should be better. अगर नहीं है तो I'll just do this. No, no, bad day to have technical glitches. But I think this should be better now. The closer it is to me, the better off we are. Okay. All right. So this should be better, I believe. Cool. ठीक है.
So this is basically what it looks like. So 40% मेरा score वहां से आएगा. So assuming that I have attempted let's say 50 questions. तो अगर मेरे 50 questions genuinely LR के अंदर attempt हुए हैं, which I think most of them are right, and I'm expecting a score of 45 marks let's say. तो अगर मेरे को LR में 45 marks मिलने का expectation है, then my overall score जो मेरे हिसाब से शायद कट ऑफ भी होगा, that is going to be 45 into 2.5, मतलब 112 115 के आसपास कट ऑफ होगा. That is my understanding. So if the other sections are also at the same level as that of LR, तो मुझे 120 125 वाला पेपर ये लग रहा है. वन सेकेंड थिंग, अगर LR के अंदर 55-60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो रहे हैं, आई नो दिस इज अ 150 टेस्ट, तो 150 के हिसाब से ही फिर मुझे प्लान करना चाहिए. सो दैट इज एन इंडिकेशन दैट आई गेट इफ आई डू LR फर्स्ट. The second section I do is the second most uncomfortable section for me, which is VR. तो मैं जनरली सबसे अनकंफर्टेबल से शुरू करता हूँ एंड आई स्लोली प्रोग्रेस टुवर्ड्स माय फेवरेट सेक्शन. तो VR होता है, VR आई जनरली डू फॉर 15 to 20 मिनट्स, so 75-80 मिनट्स हो जाएगा. मेरे ये दो सेक्शन हो जाने चाहिए. That leaves me around 70-75 minutes for the VA and quant. So मैं उसके बाद VA करता हूँ. VA में I can run through the section because one मेरा reading speed काफी decent है, it's very good, and in terms of vocabulary also I am pretty decent. Grammar के अंदर भी मतलब काफी decent सा command है, तो I know that I'll be able to run through the section entirely. Maybe I will not do the RCs, but बाकी सारे questions मैं इसमें से उड़ा दूंगा. तो I know that I am going to attempt 35-40 questions in the VA section. And last में बचता है मेरे पास QA. Now QA generally when I start I have around 40-45 minutes left for the QA section. तो QA के अंदर then I can express myself. तो उस time पे you will see that I solve questions very fast, and some questions मैं don't even calculate. तो वहाँ पे सारे शॉर्टकट्स वगैरह वो सब वहाँ पे दिखाई देंगे. सो दैट इज वन थिंग दैट आई एम मोस्ट कंफर्टेबल विथ. तो जैसे जैसे मेरा एनर्जी नीचे जाना शुरू हो जाएगा, बिकॉज अगेन दिस इज अर्ली मॉर्निंग, आई हैवंट ईटन एनीथिंग, आई विल नॉट ड्रिंक वाटर एज वेल. तो पूरे टेस्ट के टाइम पे इफ आई एम कंटिन्यूअसली टॉकिंग, मेरा एनर्जी धीरे धीरे डिप होगा. बट जैसे ही क्वांट आता है, my एनर्जी विल शूट अप एंड आई विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ इट इन द लास्ट 35-40-45 मिनट्स में हो जाएगा. So that is typically what I do in this particular context. This is going to be 30 to 35 minutes more or less. This is going to be around 35 to 40 minutes. दोनों मिला के 70 minutes is what I budget for typically. And अगर लास्ट में कुछ 5-1 मिनट बचते हैं, then I will go and mark answers randomly that I would not have marked earlier. वो सारी चीजें मैं लास्ट में करूंगा. ठीक है. So let's get going. Let's start with the test. And you are also free to follow the other way of doing it कि भाई easy section पहले कर लो, so that what happens is you are able to start with a bang, and you gain that confidence initially. First 60 minutes में confidence आता है, then बाकी वाला confidence will flow over to the other sections as well. वो भी एक thought process हो सकता है. But my thought process is generally थोड़ा pessimistic. I want to get done with the difficult things first. अगर वो मैं नहीं करूंगा, मेरे को पता है कि मैं उसको आगे push करता रहूंगा, and I'll never be able to do that, which is typically the situation with a lot of people. But that's why I want to make sure that I don't fall into that trap. ठीक है. Now without further ado, let's start with the test. मैं start कर देता हूँ test को, and let's see what we have. We have quantitative ability first. I can see a very nice set here, but I'll not get carried away. I'll get into this. ये थोड़ा interesting लग रहा है. I generally like these coding वाले questions, so I'll try to keep my calculation below this one. I'll also try to expand this so that you can see the questions properly. ठीक है. So start करते हैं. A hash S means A is B's brother. तो A is B's brother. I'll represent it like this. S equal to R का मतलब है S is R's husband. Sorry, A and S. So A hash S means A is S's brother, ठीक है. And S equal to R means S is R's husband. So S भी male है, R husband मतलब R is a female. And C at R. C at R का मतलब है R is C's mother. R is C's mother. तो ये C है, तो ये mother हो गई. ठीक है. Which of the following is true? C is S's nephew. नहीं बोल सकते, C का जेंडर नहीं पता. C is S's son. नहीं बोल सकते, जेंडर नहीं पता. C is A's nephew, जेंडर नहीं पता. A is C's uncle, ये बोल सकता हूँ मैं for sure. A is C's uncle I can say, but C का जेंडर मुझे नहीं पता, so I can't say anything about it. Next करते हैं. Q has 2 sons and 1 daughter. L is M's husband. So L is M's husband से शुरू करते हैं. L M यहाँ पे connected है, P and Q connected है, B और L connected हैं. A's father is B's brother. So ये L M और ये B A वाले जो लोग हैं ना, वो connected ही नहीं दिख रहे. तो मेरे को लग रहा है 2 trees बनेंगे यहाँ पे. तो let's see. L is M's husband. So L is M's husband. L is the male and M is the female. ये दिया हुआ है. P is married to Q. अब ये मुझे नहीं पता. P and Q are married to each other. ये इतना समझ में आ गया. B is the brother-in-law of L. B is the brother-in-law of L. मतलब brother-in-law मतलब ये B होगा M का भाई. ठीक है. Brother-in-law of L हो गया. P is A's father and A is B's brother. ठीक है. So A is B's brother. So A is B's brother हो गया.
एंड P इज A's फादर, तो ये सबका फादर इज P, ठीक है। एंड व्हाट एल्स डू वी नो, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट P इज मैरिड टू Q, ये भी पता है अपने को, तो Q शुड बी द मदर, Q हैज 2 sons and 1 daughter which is consistent, तो ठीक है, हो गया। A स्टार M का मतलब क्या है, A is B's सिस्टर, A is M's सिस्टर, नॉट रियली, A is the brother of M। L हैश B का मतलब क्या है, L is B's ब्रदर, नहीं ब्रदर इन लॉ है। Q इक्वल टू P का मतलब क्या होता है, Q is P's हस्बैंड, नॉट रियली, Q is P's वाइफ, तो ये गलत है। देन Q एट L का मतलब क्या है, L is Q's मदर, नहीं उल्टा है यहाँ पे। एंड M एट Q का मतलब क्या हो जाएगा, M at Q is sorry, हाँ, M at Q का मतलब is Q is M's mother, which is true, yes, so this is fine। नेक्स्ट देखते हैं A hash B, so I done with 3 minutes, ठीक है, it's fine, it's a decent start। A hash B का मतलब होता है A is B's brother, so thankfully A is B's brother, ये पता चल गया। B at the rate C का मतलब है B at the rate C is B's mother, तो C is B's mother, ये समझ में आ गया। C स्टार D का मतलब है C is D's sister, so C is D's sister, and D equal to E का मतलब है D is E's husband, so D is a guy, E is a lady, ठीक है। तो E परसेंट A का मतलब क्या बना, E is A's aunt, E is A's aunt which seems to be true। E परसेंट C, E is C's aunt तो नहीं होनी चाहिए, D is A's aunt तो नहीं होना चाहिए, अंकल है ये। B डॉलर E का मतलब क्या बना, B is E's nephew, वो उसका B का जेंडर नहीं पता, एंड B डॉलर B का जेंडर नहीं पता, ठीक है, तो दिस इज फाइन। How many times between 5 p.m. and 1 a.m. the hour and minute hands of a clock make an angle of 180 degrees between them? ठीक है, 5 p.m. and 1 a.m. के बीच में, so 5 to 6 के बीच में एक बार होगा, 6 to 7 के बीच में भी एक ही बार होगा, 7 to 8 के बीच में एक बार, 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12 and 12 to 1। I believe I am right, 12 to 1 के बीच में भी एक बार होगा, या 7 times I think is the answer here। Let's see, let's go for it। ओके, थोड़ा अच्छा, ठीक है, डायरेक्शन से। राधा गोज टू स्कूल, हर स्कूल ऑन अ बाइसिकल, मंडे मॉर्निंग शी स्टार्टेड फ्रॉम हर होम एंड वेंट 200 मीटर्स इन द ईस्ट डायरेक्शन, तो 200 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में चली गई। देन शी टर्न टू हर लेफ्ट एंड कवर्ड 300 मीटर्स, तो 300 मीटर ऊपर चली गई। देन शी टुक अ राइट टर्न एट सिम्स, देन शी साइकिल 200 मीटर्स, तो ये 200 मीटर हो गया। एंड देन टेकिंग अ राइट टर्न शी डिड 500 मीटर्स, मतलब ये 300 पार करके अनदर 200 शी डिड, 500 मीटर्स हो गया यहाँ पे, एंड शी केम हियर। देन शी टर्न टू हर लेफ्ट एंड कवर 200 मीटर्स, तो यहाँ पे और 200 मीटर कवर कर लिया। फाइनली टर्निंग टू हर राइट शी कवर्ड अनदर 200 मीटर्स एंड शी रीच द स्कूल, ठीक है, तो ये है, दिस इज हर होम एंड दिस इज द स्कूल। तो हॉरिजॉन्टली अगर देखेंगे 200 200 200, तो 600 मीटर्स हॉरिजॉन्टली, दैट इज द गैप, एंड अगर वर्टिकली देखेंगे तो 200 प्लस 200 400 है, तो 600 स्क्वायर प्लस 400 स्क्वायर, रूट ऑफ 5200, 36 एंड 16 रूट 5200, 10 रूट 52 और 20 रूट 13। Okay, did I make some mistake? um 52 है ना, root of 5200, which is 10 times root 52, which means 2 बार आएगा, 20 times root 13 होना चाहिए, ये 200 कहाँ से आ गया, I'm so sorry। ठीक है, बट आई विल स्टिल से 200 टाइम्स स्कूल फ्रॉम अवर होम ना, ये स्कूल है, ये होम है, तो साउथ ईस्ट में 20 रूट 13 होना चाहिए। दिस सीम्स टू बी द आंसर, आई डोंट नो इफ आई मिस्ड समथिंग। सॉरी, 600 का स्क्वायर इज नॉट गोइंग टू बी 3600, इट्स गोइंग टू बी 360000, तो दो और जीरो है, तो एक और जीरो आएगा, 200 रूट 13 इज द राइट आंसर, यस, should be right। नेक्स्ट देखते हैं, कोमोलिका इज डांसिंग ऑन द डांस फ्लोर, हर ट्रेनर इज गिविंग इंस्ट्रक्शंस लाइक लेफ्ट राइट एंड बैक। व्हेन द ट्रेनर सेज लेफ्ट, कोमोलिका हैज टू टर्न टू हर लेफ्ट टू 90 डिग्रीज, राइट करेंगे तो राइट थ्रू 90 डिग्रीज, बैक करना है तो 180 डिग्रीज करना चाहिए, ठीक है। सो सब कुछ करने के बाद कोमोलिका इज फेसिंग द साउथ डायरेक्शन, व्हिच डायरेक्शन वाज शी फेसिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द सीक्वेंस। नाउ टिपिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट लेफ्ट एंड राइट विल कैंसिल ईच अदर आउट, एक बार लेफ्ट में गए एक बार राइट में गए तो कैंसिल हो जाएगा, और दो बार बैक गए तो एक ही जगह पे आ जाएगा। सिमिलरली 2 राइट्स एंड 1 बैक, सो राइट राइट कर दिया एंड बैक अगर कर दिया तो दैट इज बेसिकली, सॉरी, राइट राइट कर दिया एंड देन बैक कर दिया तो यू आर बैक एट द सेम पोजीशन, तो ये सब नेगेट करेंगे, तो लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर। सो आई जस्ट राइट इट डाउन हियर फॉर द सेक ऑफ इट, लेफ्ट 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 बैक राइट लेफ्ट बैक, ये है, ठीक है। तो एक लेफ्ट और एक राइट कैंसिल हो जाएगा, एक राइट और एक लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा, 2 लेफ्ट्स and a back will get cancelled out, 2 backs is basically the same position,
सो एट द एंड इफ शी इज फेसिंग द साउथ, तो बिगनिंग भी उसको साउथ से ही करना चाहिए था. एक बार ट्राई करके देखना है. चलो, साउथ था, साउथ से लेफ्ट इज ईस्ट, ईस्ट से लेफ्ट इज नॉर्थ, नॉर्थ से लेफ्ट इज वेस्ट, वेस्ट से बैक इज ईस्ट, ईस्ट से राइट इज साउथ, साउथ से बैक इज नॉर्थ, नॉर्थ से राइट इज ईस्ट, ईस्ट से लेफ्ट इज नॉर्थ अगेन, नॉर्थ से बैक इज साउथ. या परफेक्ट, आई थिंक दिस इज राइट. ठीक है. सम पीपल आर स्टैंडिंग इन द क्यू, जो भी है. ठीक है. राहुल इज 23rd फ्रॉम द फ्रंट एंड अमित इज 15 फ्रॉम द रियर एंड. हाँ, दो आंसर आने चाहिए बिकॉज वी डोंट नो राहुल आगे है कि पीछे है, बट ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं. सो देर आर 22 पीपल अहेड ऑफ राहुल, राहुल यहाँ पे है, अमित इज 15, सो 14 पीपल आर हियर, अमित इज हियर. और ये दोनों के बीच में ना 10 लोग हैं. तो हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द लाइन? सो 22 प्लस 10, 32 प्लस 4, 14 इज 46 प्लस 2 इज 48. तो 48 होना ही चाहिए, एंड देयर शुड बी अनदर ऑप्शन एज वेल. सो आई थिंक दिस शुड बी द आंसर. एक बार चाहिए तो ट्राई कर लेते हैं. आर के आगे देर आर 22 पीपल एंड ए के पीछे देर आर 14 पीपल, राइट? तो 14 लोग यहाँ पे. Okay. And between R and A, there are 10 people. That is what we have. Okay, just give me a second. ठीक है, I think everything seems to be fine. तो ये अगर 10 है, this is 11, then this is 11. ठीक है. एंड ये अगर 10 है, ये R है, तो ये बचे 3. तो टोटल कितने हो गए? 11 प्लस 1 12 प्लस 10 22 23 एंड 3 26. या परफेक्ट, दिस इज फाइन. आई थिंक शुड नॉट बी एन इशू. और कुछ कहीं पे ट्रैप है? नहीं, आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर ट्रैप. ठीक है. In a family of 10 belonging to 3 generations, यार बहुत painful है ये. One of the longer sides of the rectangle and the rest are sitting on the longer side such a way that one person is facing exactly one person on the opposite side. 5 of the family members are female. 2 senior most males in the family are two sitting on two rows of the same, two ends of the same row. The male who is in the extreme left of the row is a widower and has no child. यार बहुत मेहनत लग रहा है इसके अंदर. आई विल नॉट गो फॉर दिस एट दिस पॉइंट इन टाइम. ठीक है, कुछ कहीं पे दिख रहा है तो आई कैन मे बी सी दिस, बट कुछ भी नहीं दिख रहा है. लीला एंड ललित, आई वाज जस्ट चेकिंग, बट लीला's ब्रदर इन लॉ इज प्रेजेंट बट ही इज नॉट जतिन. सो लीला का ब्रदर इन लॉ अगर ललित है, लेट्स से, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ललित whose nephew Rishi is married. Brother in law of Dilip has 2 children. Meera is sitting between her mother and her daughter. The brother of Meera is sitting opposite his wife. ठीक है, आई थिंक आई कैन डू दिस, बट मे बी इसको बाद में करना पड़ेगा. अभी इसमें कुछ फायदा नहीं है, बैक के कोई पॉइंट ही नहीं है. सो लेट्स नॉट डू दिस. लॉट ऑफ क्वेश्चंस बट हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड. तो रिस्क लेने का भी बिल्कुल टाइम नहीं है. लेट्स लुक एट दिस वन. रिलायंस सुपरमार्केट हैज अनाउंस्ड 30% रिडक्शन ऑन फूड आइटम्स एप्लीकेबल ड्यूरिंग द वीकेंड. ये क्या है? अजम्पशन होगा मेरे हिसाब से. assumptions, yeah, select which are implicit. ठीक है. People will not buy foods from other stores till the price reduction is applicable. Okay. Large of customers may visit the store and हाँ, तो 2 is definitely an assumption. People will not buy items from other stores till the price reduction is applicable. ऐसा जरूरी नहीं है ना, वो assumption थोड़ी होगा. But it could be, right? Weekend में ही apply किया है. So weekend तक people will not buy food items from other stores till the price reduction is applicable. Makes sense वैसे. बट इफ समवन इज इन अ हरी तो वो बाई कर ही लेंगे ना, मतलब वो थोड़ी वेट करेंगे. ठीक है, आई थिंक आई विल गो फॉर ओनली 2. स्लाइटली आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ इट्स बोथ, बट मेरे को तो ओनली 2 ही लग रहा है. ओके, ये क्या है? कॉमनली नोन फैक्ट्स. ठीक है. कंक्लूजंस फ्रॉम एटलीस्ट टू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स, या सिलोजिज्म्स एटलीस्ट 2. ऑल इंडियंस आर लॉक्ड डाउन. ठीक है. सम लॉक्ड डाउन आर सीरियस. फाइन. ऑल इंडियंस आर सीरियस नहीं. सम सीरियस आर इंडियंस नहीं बोल सकते. नो इंडियंस आर सीरियस. तो ये सम और नो वाला होगा, तो इधर बी और सी शुड फॉलो मेरे हिसाब से. Let's look at this. Okay. Interesting. All Indians are serious तो मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता. Some serious are Indians भी मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता. No Indians are serious भी नहीं बोल सकता. I think it should be either B or C. तो only नहीं आएगा. Only should not come. None follow. फिर I'll say none follow. I would have liked to go for this, but either होना चाहिए उसके अंदर. So unless there is some error, I don't know. All artists are innate. All innate are blessed. All artists are blessed. ठीक है, make sense. All blessed are artists, not necessary. All blessed are innate, not necessary. Only A follows. Some notes are debts. ठीक है. Some notes are debts. No debts are equities. Some equities are notes, may or may not be true. All equities are notes.
मे और मे नॉट बी ट्रू. सम नोट्स आर नॉट इक्विटीज हो सकता है, तो वही वो सम एंड सम नॉट वो वाला होगा. सम नोट्स आर नॉट इक्विटीज, सम नोट्स आर इक्विटीज. ओके, सम नोट्स आर नॉट इक्विटीज. तो यहाँ पे कुछ तो अगेन आई शुड हैव सम ईदर वाला स्टेटमेंट, अगर नहीं है तो फिर इशू है यहाँ पे. लेट्स सी. ओनली डी फॉलोस, सम नोट्स आर नॉट इक्विटीज. हो सकता है बिकॉज नो डेट्स आर इक्विटीज ना, तो जो डेट इक्विटी नहीं है वो तो इक्विटी नोट्स हो ही नहीं सकते. सो डी तो डेफिनेटली फॉलोस. सो डी आई विल से फॉर श्योर फॉलोस. देन व्हाट अबाउट बी? ऑल इक्विटीज आर नोट्स. ऑल इक्विटीज आर नोट्स हो सकता है बट नहीं भी हो सकता, वी डोंट नो. सम नोट्स आर नॉट इक्विटीज, ये भी हो सकता है. सम नोट्स आर नॉट इक्विटीज भी हो सकता है. सम नोट्स आर इक्विटीज तो नहीं हो सकता, कांट से. सम इक्विटीज आर नोट्स अगेन कांट से. सो आई विल से ओनली डी फॉलोस हियर. ठीक है. ऑल गुन्नू आर बंटी. ऑल गुन्नू आर बंटी. ऑल बंटी आर सरताज. ऑल गुन्नू आर सरताज, yes. All sartaj are gunnu, not necessary. Some sartaj are gunnu, possible, yes. No sartaj is bunny, not possible. So A and C follows. I think surprisingly सारे अपने को ऑप्शन ए ही आ रहे हैं. I don't know. That makes me slightly suspicious, but ठीक. Some reasoning are English. Some English are difficult. Some reasoning are math. And all math are difficult. ऐसे कुछ बनेगा. All math are difficult. ठीक है, ऐसे कुछ तो दिखेगा. Some reasoning are difficult, should be, yes. Some math are English, not necessary. All difficult are reasoning, not necessary. Only A follows मेरे हिसाब से. Okay, let's see. ये क्या हो रहा है? I can see into half, into 1, into 1.5. So into 2 आना चाहिए. 4.5 should be the answer. 4.5 into 2.5 is जो मैंने पहले एग्जाम बताया था, right? 45 questions in LR 112.5. 112.5 is what we can see. I don't know if you have remember this, but पहले ही मैंने बताया था ये. ठीक है. Anyway, let's see. 21, 36, 55, 78, 105. Okay. I can see 6 into 13. I can see 5 into 11. I can see 4 into 9, 3 into 7. So it should be 2 into 5, I think, 10. Right? एक बार चेक कर दे, ठीक है. So I have 3 into 7, 21. I have 4 into 9, 36. I have 5 into 11, 55. I have 6 into 13, 78. I have 7 into 15. तो ये odd numbers है ना, तो ये into 5 into 2 होना चाहिए. And this should be 1 into 3. Perfect. 10 ठीक है. नेक्स्ट क्या है? 0, 3, 8, 24, 35, 48. ओके. 5 into 7, 6 into 8, 4 into 6. I think again it's the same thing. 24 is 4 into 6, 35 is 5 into 7, 6 into 8. So this should be 3 into 5, 15 होना चाहिए मेरे हिसाब से. And or you can also say, अरे मैं difficult वाला लगा दिया मैंने. 5 square minus 1, 6 square minus 1, 7 square minus 1. That was the one. ठीक है. 11, 22, 88, 1408, 18304. Okay. 11 into 2 is 22. 22 into 4 is 88. 88 into something 1408 तो 11 से डिविजिबल है. 11 8s are 11 1s are 2s are 8s are 8 जाएगा ना. 16 आता है ना. 8 1s are 8 6 या 16 आता है. So into 2 into 4 into 16. 2 2s are 4 4 4s are 16 into 256 आना चाहिए फिर. 18304 by 1408 ये भी जाएगा 11 से. 4 5 7 8 8 या 11 जाएगा. 11 128 था. 11 1s are 11, 76 are 76 are 41 664 by 128. 16 से जाएगा. 16 8s are 128. 16 104 8 and 104 will go. 13 8s are 104. Yeah, into 13. 13 कहाँ से आ गया? Okay, understood. Understood. Did I? Into 2 is because 1 plus 1. Into 4 is 2 plus 2. Into 16 1. Yeah, into 13. Perfect. So understood. 18304 into sum of digits 12 16. 16 for the 64. Should end in a 64. Sub 64 में 16 is a 48. 128 132 2922864 ऐसे कुछ आना चाहिए. 2922864. This should be the one. Let's see. Let's see. 8 19 42 85. 353 712. Okay. 8 into 2 plus 3, 19 into 2 plus 4, 42 into 2 plus 1,
353 इंटू 2 + 6, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है ना. 8 into 2 + 1, sorry, 8 into 2 + 3, sorry. 19 into 2 + 4, okay. 42 into 2 + 1, surprising. Then I have 353 into 2 + 6. Ideally it should be 170 के आसपास कुछ होना चाहिए, 170 प्लस समथिंग होना चाहिए. So +1, let's say, -5. If this is 154, बहुत पे चला जाएगा. 16 तो माइनस नहीं कर सकते. -6 किया मैंने, लेट्स से 174 अगर मैंने किया, लेट्स से +4. नहीं, आई कांट सीम टू अंडरस्टैंड दिस. और क्या कर सकते हैं इसके अंदर? 353 इज अ प्राइम और कॉम्पोजिट. 7 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 13 26 93 नहीं होगा, 17 34 नहीं होगा. दैट्स इट, आई थिंक. इसके आगे तो है ही नहीं कुछ भी. तो 353 इज अ प्राइम नंबर बेसिकली. 19 इज अ प्राइम नंबर. आई थिंक आई गॉट द लॉजिक करेक्ट, बट वो 4 और 3 और ये सब क्यों आ रहा है वो समझ में नहीं आ रहा. आई नो 1 + 9 10, सो 6 आना चाहिए. पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा. ठीक है, आई मार्क समथिंग, मार्क फॉर यू एंड गो हेड. Okay, 5 friends are there and compare the performance in 3 examinations. CAT, SNAP, CET, ये सब है. Chinna has scored more than Amarendra but less than Katappa, कुछ तो दिया हुआ है. The difference in the ranks of Chinna in CET and CAT and MHCET is 3. The difference in the ranks of Katappa and is maximum possible marks, कुछ तो दिया हुआ है. ठीक है, let me just check this once. Sorry. Okay. CET and CAT, right? CET and CAT. देखते एक बार क्या चल रहा है इसके अंदर. Chinna has scored more than Amarendra but less than Katappa. So कटप्पा, फिर चिन्ना, फिर अमरेंद्र, ये आएंगे यहाँ पे सीईटी के अंदर. डिफरेंस इन द रैंक्स ऑफ चिन्ना इन कैट एंड एमएचसीटी इज 3. ओके, चिन्ना इन कैट एंड एमएचसीटी इज 3. तो इसको अगर यहाँ पे 2 मिला है तो इधर 5 मिला होगा, इधर 1 मिला है तो 4 मिला होगा, एंड सो ऑन एंड सो. इसको 5 तो नहीं मिल सकता. सो दिस गाय इज इधर 2 3 और 4, राइट? सो ये यहाँ पे जस्ट राइट 2 3 और 4. सो दिस वन ऑटोमेटिकली बिकम्स 5. 3 तो नहीं हो सकता ये, और 1, राइट? तो यहाँ पे 5 या 1 होगा चिन्ना इन कैट. फाइन. The difference in the ranks of Katappa in CAT and MHCET is equal to CAT and CET के बीच में difference तो 1 और 5 ही होना चाहिए Katappa का. So Katappa is either okay, maximum possible difference ना. So 5 and 1 होना चाहिए. So Katappa ideally has to be rank 1 here. So Katappa has to be rank 5 here, which means Chinna has to be rank 1 here, which means Chinna has to be rank 4 here. That is what I think it is. Devsena did not get the same number of marks. The ranks of Devsena in, अच्छा snap भी है. Oh, I didn't see snap, sorry. ठीक है, but I think अभी तक तो issue नहीं है. The ranks of Devsena in snap and that of Katappa in MHCET are different. ठीक है, snap भी डाल देते हैं यहाँ पे. Devsena scored more than Bahubali in each examination. Fine, fair enough. Okay. और क्या है? The sums of the ranks of Amarendra, Chinna and Katappa in the 3 examinations are all equal. अमरेंद्र, चिन्ना एंड कटप्पा के सारे में इक्वल है. तो दिस इज 5 + 1 6 है अभी तक. देवसेना इन स्नैप एंड कटप्पा इन सीईटी इज डिफरेंट. थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है ये. अमरेंद्र, चिन्ना एंड कटप्पा आर इक्वल. देवसेना स्कोर मोर देन बाहुबली इन ईच एग्जामिनेशन. सो देवसेना कांट बी 5. इसका 4 है तो ये 5 ही होना चाहिए. अमरेंद्र शुड बी 5 हियर. तो बचा बाहुबली एंड देवसेना. देवसेना स्कोर्ड बेटर देन बाहुबली इन ईच ना, स्कोर्ड मोर देन बाहुबली. तो दिस बाहुबली हैज टू बी 3, देवसेना हैज टू बी 2 हियर.
Katappa in MHCET and Devsena in Snap are different. Fair enough. तो ये भी तो K5 और C1 हो गया ना यहाँ पे, तो 5K डाल देता हूँ यहाँ पे मैं, C1 हो गया। एंड अमरेंद्र का बाकी का तो कुछ बोला नहीं है अपने को। ओके, अमरेंद्र बाहुबली एंड देवसेना, फिर से उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी। अमरेंद्र बाहुबली एंड देवसेना, देवसेना इज बेटर देन बाहुबली, सो देवसेना शुड हैव एटलीस्ट 2 और 3। देवसेना का 4 हो ही नहीं सकता। बाहुबली ऑन द अदर हैंड शुड बी 3 और 4, अमरेंद्र शुड बी 2, 3 और 4, ये होना चाहिए। स्नैप के अंदर द रैंक्स ऑफ देवसेना इन स्नैप एंड कटप्पा इन एमएचसीईटी आर डिफरेंट, तो देवसेना का 5 तो नहीं है, वो तो ऑब्वियस था, 5 होना ही नहीं चाहिए था। अच्छा, कटप्पा इन सीटी, ओके, सो देवसेना इज नॉट रैंक 1। So Bahubali can be, so Devsena can either be 2, 3 or 4. Bahubali on the other hand can be either 3, 4 or 5, 3, 4 या 5 में से, तो ऑप्शन 1, 2 तो ऑप्शन है ही नहीं आंसर। और क्या दिया हुआ है अपने को? सम्स ऑफ द रैंक्स ऑफ अमरेंद्र, चिन्ना एंड कटप्पा आर इक्वल। अमरेंद्र, चिन्ना एंड कटप्पा। सो एक सेकेंड, कटप्पा इज 5 + 1 6, चिन्ना इज 5, so चिन्ना का रैंक शुड बी वर्स देन कटप्पा का रैंक यहाँ पे बाय 1। सो कंसेक्यूटिव रैंक्स होने चाहिए इन लोग के। सो चिन्ना, कटप्पा एंड चिन्ना शुड बी लाइक दिस। अमरेंद्र का अगर 5 + 2 7 हो जाता है, देन कटप्पा हैज टू बी 1, 2। सबका अलग अलग था क्या? डिस्टिंक्ट स्कोर नीचे एग्जामिनेशन, ठीक है। रैंक सेम है कि नहीं वो पता नहीं ना अपने को। ठीक है, रैंक इज डिफरेंट, स्कोर इज डिफरेंट। सो कटप्पा चिन्ना कैन बी 1, 2, दे कैन बी 2, 3, दे कैन बी 3, 4, और दे कैन बी 4, 5 एज वेल, कुछ भी चलेगा इसके अंदर। बट अगर कटप्पा 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अगर होता है, तो 5 + 4 + 1 होना पड़ेगा अमरेंद्र को। ओके, now I have to go for this because I have already spent I think around 4 minutes, 4.5 minutes मैंने इस पे खर्चा किया है, तो I would rather go for this and I'm almost there, क्योंकि यही केसेस, क्या आगे तो केसेस है ही नहीं। ठीक है, ये वाला भी लिख देते हैं। अगर ये 4 और 5 हैं दोनों, देन कटप्पा विल बी 5 + 4 9 + 1 10, चिन्ना विल बी 4 + 1 + 5 10, अमरेंद्र विल बी 5 + 2 7। अगर आता है तो यहाँ पे अमरेंद्र 3 होगा, विच मीन्स देवसेना विल हैव टू बी 1, जो पॉसिबल ही नहीं है, तो अमरेंद्र यहाँ पे 3 नहीं हो सकता, तो अमरेंद्र यहाँ पे 3 नहीं हो सकता, तो ये दोनों तो 10 हो ही नहीं सकते, 10 हो सकते बट इसको आगे आना पड़ेगा। ठीक है, 5 3, तो ये 2 होना चाहिए अमरेंद्र, अमरेंद्र कैन बी 2, बट देन अगेन देवसेना विल बी 1। अगर अमरेंद्र 2 हुआ तो भी प्रॉब्लम है, अमरेंद्र 3 हुआ तो भी प्रॉब्लम है, अमरेंद्र 2 हुआ तो भी प्रॉब्लम है, सो अमरेंद्र हैज टू बी 1 हियर। तो इसका मतलब अमरेंद्र को यहाँ पे 4 ही मिलना चाहिए, तो अगर ये 4 है तो ये 1 बन जाता है। सॉरी, देवसेना इज 2 एंड बाहुबली इज 3, दिस इज अ पॉसिबिलिटी, एंड आई एम अज्यूमिंग एक ही आएगा इसके अंदर आंसर, तो यही आंसर होना चाहिए फिर मेरे हिसाब से। दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक मे बी, बाकी तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा। आई थिंक दिस इज फाइन, चलो देख लेते हैं, आई मार्क दिस नाउ। बाहुबली इन स्नैप आई थिंक इज 3, whose summation ranks will be highest if we add rank add the ranks of every individual student। अब ये तो करेंगे तो 3 का तो नहीं होना चाहिए, सो कटप्पा, चिन्ना एंड अमरेंद्र का तो सेम ही है, तो वो तो हाईएस्ट नहीं होना चाहिए, तो बाहुबली या देवसेना का होगा, रैंक विल बी हाईएस्ट। बाहुबली का रैंक शुड बी हायर देन देवसेना बिकॉज बाहुबली इज वर्स देन देवसेना, तो ये तो बिना सॉल्व किए शायद आ जाता अपने को, आई एम अज्यूमिंग, एंड इसमें भी आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। सो यू विल हैव 3 हियर एंड 3 हियर, 3 + 3 6, 6 + 3 9 आ रहा है इसमें। इंटरेस्टिंग,
top two is going to be first rank, least score is going to be fifth rank. Sums of the ranks of Amarendra, Chinna and Katappa are all equal है, तो बाहुबली देवसेना में से आंसर होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो बाहुबली होना चाहिए, but for some reason I'm not able to get that. Not sure of this, not sure of this. फिर ये तो 10 नहीं होगा मेरे हिसाब से. ठीक है, कटप्पा एंड चिन्ना आर 1 and 2, देन 7 हो जाएगा, बट अमरेंद्र तो ऑलरेडी 7 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता. सो दिस इज डेफिनेटली नॉट पॉसिबल, बिकॉज अमरेंद्र ऑलरेडी एटलीस्ट 7. अगर 2 होता है कटप्पा का, 5 6 7 8 अगर होता है, तो अमरेंद्र विल हैव टू बी 2, एंड यहाँ पे अमरेंद्र फिर से 1 हो जाएगा. अमरेंद्र अगर 1 हो जाता है, तो बाहुबली विल नाउ बी 5 एंड देवसेना विल बी 4. ये होना चाहिए. एंड अगर 3 and 4 में पकड़ के चल रहा हूँ, तो क्या होगा, 3 and 4 अगर पकड़ते हैं, तो 3 अगर कटप्पा का है, तो 5 6 7 8 9 हो जाएगा. दिस गाय विल हैव टू बी 4, यस. एंड इसको अगर 9 करना है, तो 5 4 नहीं चलेगा, या तो 5 3 1 होगा, या 5 2 2 होगा, बट 2 तो नहीं हो सकता, तो इसको 1 ही होना पड़ेगा. तो अमरेंद्र कुछ भी करके 1 होगा, एंड यहाँ पे देवसेना बिकम्स 2 एंड बाहुबली बिकम्स 5. मेरे हिसाब से तो बाहुबली फिर 5 ही आना चाहिए कुछ भी करके. वो पहला वाला शायद गलत है, आई डोंट नो व्हाई इट इज रॉन्ग, बट इट शुड बी रॉन्ग, आई एम अज्यूमिंग, बिकॉज अगर बाहुबली को 5 कर दे, देन एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस. तो फिर बाहुबली राइट होना चाहिए मेरे हिसाब से. एंड चिन्ना एंड देवसेना इन कैट एग्जाम, चिन्ना एंड देवसेना इन कैट, देवसेना एंड चिन्ना इन कैट. अब यहाँ पे इसमें से कौन सा राइट है, फिर से एक बार देख लेते चलो. देवसेना डिड नॉट गेट द सेम रैंक इन एनी टू एग्जामिनेशंस. तो यहाँ पे 2 है, आई डिडंट रीड इट प्रॉपर्ली, तो ये 3 है, ये 3 है, तो ये बाई 4 होना चाहिए. और ये 4 और ये 3 है, तो ये तो 2 ही होना चाहिए. तो अमरेंद्र तो 2 ही है, which basically means 5 6 7 and 8 होना चाहिए. तो ये तो आंसर नहीं हो सकता. तो दिस इज दी वन, या आई गॉट इट नाउ, ये परफेक्ट है. ठीक है, अंडरस्टूड. तो क्या करना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन चिन्ना एंड देवसेना इन कैट, चिन्ना एंड देवसेना इन कैट 1 and 3, 2 का गैप जो है, तो स्नैप में भी 2 का गैप होना चाहिए. देवसेना एंड बाहुबली 2 का गैप नहीं है. कटप्पा एंड चिन्ना में 2 का गैप नहीं है. चिन्ना एंड देवसेना में 2 का गैप है. ओके, देवसेना कटप्पा में 2 का गैप है. चिन्ना इज 1 कैट ना, एंड देवसेना इज 3. ठीक है, फिर से 1 and 3 ढूंढना है क्या अपने को. सो देन आई विल से अमरेंद्र एंड चिन्ना, वो तो दिया नहीं है. देवसेना एंड कटप्पा, ओके, एंड देवसेना एंड अमरेंद्र, वो तो नहीं है फॉर श्योर. चिन्ना एंड देवसेना, अच्छा चिन्ना देवसेना नहीं है, सॉरी, कटप्पा एंड देवसेना, दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग एट. कटप्पा एंड चिन्ना नहीं है, देवसेना बाहुबली नहीं है. ओ आई डोंट नो, आई वाज रैंडमली गेटिंग कंफ्यूज. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द ब्लंडर्स ऑफ द टेस्ट अभी तक का. लेट्स सी. देवसेना never got first rank in any of the examinations. 3 2, yeah, this is true, not false ना, तो ये true हो गया, सही है. कटप्पा बाहुबली got the same rank in snap and MHCET. कटप्पा and बाहुबली 5 5, yes. कटप्पा and बाहुबली got the same rank in snap and MHCET. कटप्पा in snap नहीं नहीं गलत है. कटप्पा in snap was 2, नहीं गलत है. ठीक है, I think this is fine, I'll not waste more time. If we write the ranks of each student in CAT, SNAP, MHCET, तो CAT, SNAP, NHCET में डिसेंडिंग ऑर्डर आना चाहिए. तो CAT में अच्छा रैंक, बड़ा रैंक था, एंड देन कम हो गया. तो अमरेंद्र का रैंक अगर देखेंगे तो 2 से 2 नीचे तो नहीं आ सकते. बाहुबली 4 बाहुबली 5, नॉट रियली. चिन्ना 1, नहीं, डिसेंडिंग नहीं हो सकता. देवसेना इज 3, देवसेना 4, नॉट रियली. एंड कटप्पा ही होना चाहिए 5, then 2 and 1, yeah, perfect. From the following has not secured a rank which is a composite number. Okay, अमरेंद्र को क्या क्या मिला, 5 मिला, अमरेंद्र को 2 मिला, not composite, and अमरेंद्र को 1 मिला, which is a composite number. Not secured a rank which is a composite number. तो इसको तो नहीं मिला है. कटप्पा का भी देख लेते एक बार, है कि नहीं. Let's see, I'll just mark this for the sake of understanding. 1 5 and 2, yeah, both अमरेंद्र and कटप्पा.
चिन्ना को कुछ तो मिला था क्या? चिन्ना गॉट अ 4 हियर, या परफेक्ट. बाहुबली गॉट अ 3 and 4. यस, ठीक है. ओके, चलो. I think I spent a good 12-13 minutes on that one. Ah. Should the authorities pull industrial units out from the capital city Delhi? Yes, industrial units being a major source of high pollution is ill health of the public. ठीक है, but क्यों pull out करोगे यार? As Delhi is the capital of the country, industrial units must be pushed out of city limits. Must be pushed out of city limits. मतलब कैपिटल है तो उसको बाहर क्यों करना है सिटी लिमिट्स के? मेरे को दोनों भी नहीं लग रहा है स्ट्रेंथन कर रहे हैं. वन इज स्टिल फाइन. वन स्ट्रेंथन्स मेरे हिसाब से, एंड टू वीकन्स भी नहीं बोल सकते. टू इज स्टूपिड मतलब. चलो ठीक है, टू न्यूट्रल कर देता हूँ मैं. आई डोंट नो. स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. एटलीस्ट टू स्टेटमेंट्स आना चाहिए, बट स्टेटमेंट एक ही है मेरे पास, तो कैसे करेंगे? ठीक है, एनीवे. स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. वन हु इज फास्ट. सो इफ यू आर स्लो एंड स्टडी, सो इफ स्लो एंड स्टडी, देन विन द रेस. ठीक है. So it means that if you do not win the race, then you are not slow and steady. One who is fast cannot win the race. ये तो नहीं बोला हुआ है. One who will slow will definitely win. नहीं, steady भी तो होना चाहिए. I don't think either follows. None follow. When we suffer, we do not keep our misery limited to ourselves. Instead, we keep distributing it to others. Certainly, this is not a proper way to live. We all want to live peacefully within ourselves and those around us. After all, among social beings, we have to live and interact with others. How then can we live peacefully? How then can we remain harmonious to ourselves and maintain peace and harmony around us? Vipassana enables us to experience peace and harmony by purifying the mind, freeing it from suffering and the deep-seated causes of suffering. Step by step, this practice leads to higher spiritual ticket. Strengthens the argument. We at mental peace or else will keep on disturbing it around us. Fine. Those who practice vipassana are more submissive. Submissive to nahi bol sakte, that is different. So vipassana tool has been acclaimed to be widely successful to attain mental peace by helping a people with positive thoughts. Makes sense. This is fine. Chalo. Vipassana gets rid of all the negativity around us. All the negativity to nahi bol sakte. Thoda kam karenge ye theek hai, but all the negativity to difficult hai. Instrumental in getting people around you to calm down so there is no negativity affecting you. I think this is right. I like option 3. OTT are audio video hosting streaming services. Netflix, Amazon Prime, whatever, started out as content hosting platforms. Production bhi chalu kar diya, short films bhi chalu kar diye. Far reaching impact. Union government has brought OTT under the ambit of Ministry of Information Broadcasting. It will give the government control over these platforms which were thought to be unregulated till now, as there is no regulatory mechanism or law governing digital content. ठीक है. Weakens the argument that a regulatory mechanism is required. Okay. Controlling digital content is a myth because there is no way the entire world wide web can be controlled by any government. ठीक है, which is fine. The OTT platforms in other countries are not regulated. उसका में वो क्या करना है? Film censorship board वो भी क्या करना है? OTT platforms have internal governing systems which provide ratings to the movies and according to. ठीक है, this is fine. I like this one. तो regulation करने का जरूरत नहीं है. All OTT are similar, do not have similar content, so cannot be governed. वो भी छोड़ दो. Operational issues को छोड़ दो. Is a myth, वो भी छोड़ दो. ठीक है. Anyway, I think this is fine. Cause and effect. Okay. Practice of meditation is increasing among the people to reduce the stress caused by negative emotions. Okay. Frustration have been observed steadily among people. Okay. So 2 is the cause, 1 is the effect, I'm assuming. 2 is the cause, 1 is the effect. Option 2 मेरे हिसाब से. Now I'll have to go slightly faster, नहीं तो problem हो जाएगा. Farmer uses a shovel, does not capture. Carpenter uses a saw. Policeman uses a baton. Firefighter uses a hose. Teacher uses a rake. Rake तो नहीं होगा ना. Teacher uses a rake तो गलत होना चाहिए. Only D मेरे हिसाब से. मेरे हिसाब से तो ये ठीक है. ठीक है, टीचर तो रेक यूज नहीं करेगा. ओके, दिस इज दिस वन. लेट्स सी. कैंडिडेट शुड बी, ठीक है, एक्सेप्शंस दिए हुए. आई थिंक दिस इज द इजियर वन. 70% इन फाइनल ईयर स्टूडेंट होना चाहिए. थर्ड ईयर में 70 चाहिए. 17 रिटर्न एंड 18 ग्रुप डिस्कशन पर. ठीक है. अमेय वाग is studying in the final year of computer engineering. I still have 23 minutes to go by the way for the section. उसके बाद I'll let go. अभी थोड़ा liberally मेरे को छोड़ना पड़ेगा. Anyway, final year computer engineering में है. So A is satisfied. He is a classical singer. 77% in the third year. ये भी satisfied.
रिटर्न टेस्ट में 227 आउट ऑफ 300, मोर देन 70%, ये भी सेटिस्फाइड. ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू में 93% मार्क्स, ये भी सेटिस्फाइड. एवरीथिंग इज फाइन, सो ही और शी शुड बी सिलेक्टेड एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी. तो 1 होना चाहिए, सब कुछ ही सेटिस्फाइड है, तो इशू तो नहीं लग रहा मेरे को यहाँ पे. नेक्स्ट, रूपाली भोसले, फाइनल ईयर स्टूडेंट इन द इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो ए ही गलत है. स्कोर्ड 81 इन द थर्ड ईयर, ये ठीक है. रिटर्न टेस्ट 91% ठीक है, ये भी 71 ठीक है. तो बट यहाँ पे ए अगर गड़बड़ है तो क्या करेंगे? एक्सेप्ट ए इज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. यस, शी इज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हैज कंप्लीटेड अ कोर्स इन नेटवर्किंग. उसने नेटवर्किंग में कोर्स किया हुआ है. शी हैज कंप्लीटेड अ 1 year कोर्स इन फैशन डिजाइनिंग फ्रॉम FTII, बट नेटवर्किंग में किया है कि नहीं मेरे को नहीं पता, सो आई कांट से. राइट, अभी के लिए तो आई कांट डू एनीथिंग. इट्स नॉट सफिशिएंट बिकॉज उसने नेटवर्किंग में अगर कोर्स किया है तो मे बी आई विल डू समथिंग, आई सेंड हर टू GMHR. बट वो नहीं कर सकते यहाँ पे बिकॉज नेटवर्किंग को कुछ इशू पता ही नहीं है मेरे को. फाइन. Abhijit Mahajan is studying in the final year of computer engineering. Fair enough, one is done. He has scored 82%. Fine. Return में 80 के ऊपर है, ठीक है. Not good at talking and scored the 63 in the ये वाला part. तो D में अगर नहीं किया तो क्या करेंगे? Except D, but has scored more than 80% in the written test. उसका 80% के ऊपर है. He must be referred to director training के पास जाना चाहिए. तो option 3. Next देखते हैं. मोहक पाटिल इज अ फाइनल ईयर स्टूडेंट इन द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैच, मतलब 1 तो नहीं है, ठीक है. ही हैज आल्सो कंप्लीटेड 1 year डिप्लोमा इन नेटवर्किंग फ्रॉम अजय अतुल नेटवर्किंग इंस्टीट्यूट, तो उसका वो नेटवर्किंग वाला पार्ट सॉर्टेड है. ही हैज स्कोर्ड 88% इन द थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, प्रिपेयरिंग फॉर कैट. फाइन. अंडरगॉन इंटेंसिव ट्रेनिंग इन पब्लिक स्पीकिंग. ही हैज स्कोर्ड 84% इन द डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू. अभी उसका रिटर्न टेस्ट में भी मेरे को पता नहीं क्या चल रहा है करके. तो रिटर्न टेस्ट में आई डोंट थिंक वी हैव एनी अदर कैविएट एज सच. तो रिटर्न टेस्ट का मेरे को स्कोर ही नहीं पता उसका. तो अभी उसका आ रहा है कि नहीं आ रहा है स्कोर मेरे को नहीं पता. द अदर थिंग इज उसका अगर रिटर्न टेस्ट में 80% के ऊपर स्कोर है देन ही विल बेसिकली बी रेफर टू समवन, बट मेरे को रिटर्न टेस्ट का स्कोर नहीं पता, सो आई विल अगेन से इट इज इनसफिशिएंट. सॉरी, द डेटा इज नॉट सफिशिएंट. मेरे हिसाब से तो नॉट सफिशिएंट होना चाहिए, रिजेक्टेड तो नहीं लग रहा. आशीष राउत इज इन दी फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग. कौन सा इंजीनियरिंग पता नहीं है. नेटवर्किंग स्पेशलिस्ट एंड वर्क एज अ नेटवर्किंग इंजीनियर. ओके. 77% इन द रिटर्न टेस्ट, फाइन. 81 इन द ग्रुप डिस्कशन, फाइन. थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग 93% मार्क्स, वो भी ठीक है. बट अपने को ये नहीं पता कि वो फाइनल ईयर इंजीनियरिंग कौन से इंजीनियरिंग में कर रहा है. कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है कि क्या कर रहा है. अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है तो सिलेक्ट होना चाहिए. एंड अगर यहाँ पे इफ ही हैज डन दिस then he should basically be. Again मेरे को 5 आ रहा है. I don't know. I think something is wrong somewhere. पता है something is off somewhere, but I'll go with the answer that I have. Sanjay Mhatre, third year में 87% है, which is good. Computer engineering is fine. 258, this is very good. 78% in group discussion, 80 नहीं हुआ है उसका. बट यहाँ पे उसका 80% के ऊपर है, तो इसको भेजना चाहिए वहाँ पे डायरेक्टर ट्रेनिंग के पास. सो 3. आई डोंट नो, दिस इज अ वियर्ड सेट है. मतलब जनरली 1 2 3 4 5 होते हैं, बट ठीक है. हाँ, ये तो मेरे को नहीं करना है. आई डोंट नो. फोर्थ संडे, second Sunday and fourth Sunday, exactly 1 month, and there are so many people who are there. How many people are there? AMS, MVP, SNK, 10 people are there. Integers है 2 days in 1 month. Second Sunday and fourth Sunday को क्या था करना चाहिए क्या? हाउ मेनी आर देयर? देयर आर परकशन, वुडविंग, स्ट्रिंग, ब्रास एंड कीबोर्ड, दो दो हैं. आई थिंक आई शुड गो फॉर दिस. आई शुड गो फॉर दिस. तो सेकेंड संडे एंड फोर्थ संडे दोनों में एक बार देखते क्या चल रहा है. मृण्मयी अटेंडेड दी वन, तो मृण्मयी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं. एंड दिस इज परकशन, PWSBK. हाँ ठीक है, एटलीस्ट दिस इज फाइन. सो मृण्मयी ये है. इन द मंथ ऑफ जनवरी वेर द यंगेस्ट अमंग ऑल द 10. अब जनवरी कहाँ से आ गया? सॉरी, आई एम सो सॉरी. 2 Sundays ऑफ एग्जैक्टली 1 month ना, तो जनवरी तो पता नहीं क्या हुआ करके. ठीक है, व्हाटएवर, डजंट मैटर, मेरे को नहीं पता ये क्या है. वेर द यंगेस्ट अमंग ऑल द 10, ऑल द स्टूडेंट्स आर 5 to 17. विपुल एंड मल्हार, आई जस्ट राइट इट डाउन. ओके, विपुल यहाँ पे लिखता हूँ, मल्हार यहाँ पे लिखता हूँ. एटलीस्ट ये वाला आई पुट सो दैट आई नो व्हाट आई एम गेटिंग इनटू. तो विपुल तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से. देन वर्कशॉप आफ्टर निखिल बट बिफोर अनीता वेर द सेम as those that attended after Pankaj but before Vipul, which in turn is half. छोड़ो. 7 students between Pritha and Mrunmayee, so Pritha should be here. 7 students Pritha and Mrunmayee, so ठीक है, understood. So अगर Pritha 1 पे थी तो Pritha अगर 1 पे थी तो 7 बीच में, so Mrunmayee should be 9th.
एंड अगर पृथा 2 पे थी देन मृण्मयी शुड बी 10th। यही दो पॉसिबिलिटीज है, कोई पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करता, सो मृण्मयी शुड बी द 9th और 10th। और क्या दिया हुआ है? यार पता नहीं, आई थिंक दिस आर मल्टीपल मंथ्स एज वेल। ओके सो माय बैड, लेट्स नॉट डू दिस। ये कुछ विपुल और निखिल का कुछ तो दिया था ना, नंबर टू अटेंड वर्कशॉप आफ्टर निखिल बट बिफोर अनीता वे द सेम एज बिफोर पंकज, आफ्टर पंकज बट बिफोर विपुल, which in turn is half the students who attended the workshop after Malhar but before Shodhan. Hmm. Interesting. ठीक है, I'll mark it at the end. I have 17 minutes to go, तो ये मेरे को छोड़ना पड़ेगा, can't do. ओके के बाद देखते हैं क्या चला ये। एस के डी वाई आर एल एच बी 70 कुछ तो इनपुट है, आउटपुट पे क्या चल रहा है? टी जी एच अल्फाबेटिकली, फिर से टी आर एस आर एस टी, नहीं कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, कांट सी। और ये क्या, एस के डी वाई इज बिकमिंग समथिंग एल्स। ठीक है, क्या ये एस के डी वाई इज गोइंग हियर, एस जे के एक्स कहाँ से आ गया? यहाँ से आ गया, एक्स कहाँ से आ गया? 106 कहाँ से आ गया? तो 50 टू 106 है मुझे में, 76 89 24 43 18। ठीक है, एक मेरे पास कुछ तो दिमाग में आ रहा है, लेट्स सी। चलो, एस के डी वाई इज फाइन, जी डब्ल्यू ई ओ इज फाइन, क्यू एल एम सी इज फाइन, एफ आर डी इज फाइन, इसके तो आर एल एच बी का ये हो गया। ठीक है, सो आर एल एच बी बिकम्स एस जे के एक्स, तो बी का ऑपोजिट है ये। ओके, आर एस दिस इज +1, जे के एल -2, एच आई जे के +3 -4, ए जेड वाई एक्स +1 -2 +3 -4, ये हो रहा है। बट वाई आर एल एच बी, इसको ही क्यों लिया? एंड बाकी सब तो ये ठीक है, तो ये तो डबल हो गया। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, एस जे के एक्स इज एज इट इज, एंड आर जे पी वाई का कुछ इशू हो गया, तो ये सी वाला होना चाहिए, क्यू एल एम सी, मेरे हिसाब से। तो दिस इज फाइन, दिस इज फाइन, दिस इज फाइन, या क्यू एल एम सी हैज बिकम दिस। सो पहले आर वाला चेंज हो गया, फिर क्यू एल एम सी वाला चेंज हो गया। व्हाई इज दैट द केस? देन तो मेरे हिसाब से एस के एफ जे को चेंज होना चाहिए। लेट्स सी, आर जे पी वाई, एस जे के एक्स, एस के डी वाई, जी आई, एस के एफ जे होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक आई एम गेटिंग द हैंग ऑफ दिस। एक बार मैं जस्ट आई जस्ट चेक इट, 1 to 1 मैपिंग करके मैं ट्राई करता हूँ इसको, वो तो ठीक है, नहीं तो फिर आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। ठीक है, तो स्टेप 3 में टी आई आई एफ आ रहा है, तो विच इज एस के एफ जे। सो ए ई आई के शुड बी द फर्स्ट वन, सो ए में से ए से एक आगे किया, ए से एक आगे, सो बी सी एल, बी सी एल समथिंग शुड बी माई फर्स्ट पार्ट। ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 5 बचा मेरे पास। ठीक है, तो नंबर देखते हैं, 90, सो इट्स इधर ऑप्शन 2 और ऑप्शन 5 बाय द वे। 189, ठीक है, 90, आई हैव टू लुक एट द फोर्थ नंबर नाउ। सो 190 हुआ, ये 190 किधर से आ गया, अभी कैसे पता चलेगा मेरे को? 106 was 53 into 2, then what happened, 106 was as it is, 76 became 190, ये कैसे हो गया? 114 ऐड कर दिया, 19 4 था, 19 6 था। ठीक है, देखिए 89 24 43 18, ठीक है, 76 became this, 53 into 2 क्यों क्या था? 76 plus 114, 19 into 4, 19 into 6। ठीक है, देखते हैं, 19 into 4 19 into 6 था, तो यहाँ पे ये जो 36 है, दैट शुड हैपन समथिंग। 6 9 into 4 9 into 6 54 होना चाहिए फिर मेरे हिसाब से तो। ओके, 90 या 46 में से कुछ तो होना चाहिए।
I'll go with, ठीक है और भी देखते हैं कुछ है तो 46 दो जगह पे दिख रहा है ना, so I'll go with 46 then I'll go with this one. This is just a random guess by the way. Input is this, how many steps are required to get to the final output? I'll go with 6 only यार, मतलब सेम ही लग रहा है मेरे को, तो लग रहा है वही वही स्वैप करते जा रहे हैं. Can't see anything. Which of the following is 7 from the right in step 4? Step 4 1 2 3 4 5 6 7, ये 190 आएगा, तो जो भी वो थर्ड वाला था वही आएगा. तो 36 का whatever I had decided 46 आएगा करके वही आना चाहिए फिर आंसर मेरा यहाँ पे. If the input is this, what is the difference between the largest and the smallest number in step 5? Largest and the smallest, ये 356 आया किधर से तो मेरे को पता नहीं. एंड स्मॉलेस्ट नंबर तो 18 ही है, तो छोटा नंबर सबसे छोटा नंबर तो वही होगा, तो 23 एंड समथिंग बेसिकली. तो समथिंग प्लस 23 should be the largest number. Where did this 356 come from? 84 129 190 106 89 became 356, इंटू 4 कर दिया. किसको इंटू 4 कर दिया? लार्जेस्ट नंबर इंटू 4 कर दिया. लार्जेस्ट नंबर इंटू 4, 63 इंटू 4 इज 252, 252 माइनस 23 इज 220 233 ऐसा कुछ आएगा. आई डोंट नो, इसको तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया सीधा. आई एम अज्यूमिंग या दैट्स अ मल्टीप्लिकेशन बाय 4. तो 63 इंटू 4 अगर मैं करता हूँ 252 राइट. 252 माइनस एनीथिंग इफ आई डू, तो इतना छोटा नंबर तो नहीं आएगा. ठीक है एक और देखते हैं. 63 थी 189 पकड़ लो, 189 माइनस 23 कर लो 166. आई कांट सी एनीथिंग, आई गो विद दिस. चलो आई डोंट नो. हाउ मेनी स्टेज एनपीजेके एंड बीसीएलजी? एनपीजेके इज द फर्स्ट वन एंड इज द लास्ट वन. ठीक है. सो एसकेडीवाई एंड एसकेएफजे. एस टी टी दो वाले टी होने चाहिए मेरे हिसाब से. सो 1 2 3 4 5 है इसके बीच में, तो मेरे हिसाब से तो 5 ही होने चाहिए. 4 कर देते हैं. आई डोंट नो दिस, सॉरी. इसका कुछ तो मार्क करता है, आई डोंट नो यार. टी डी जे डी मेरे को नहीं पता क्या है. ओके नंबर ऑफ ट्रपीजियम्स 22 35 10 25 30. ओके ट्रपीजियम आई कैन सी 1 2 3 ये वाले में. 4 5 6 7 8 9 9 तो मेरे को दिख गए. So I'm basically saying this 1 2 and 3. ओके 4 4 4 4 है बेसिकली. 12 हो गए यहाँ पे, 12 तो मेरे को मिल गए हैं. फिर आई विल गेट 1 13 14, 1 बिग 1 15 16 17 17 तो मेरे को दिख गए. दिस वन 18 19 20 21 22 23 तो दिख गए मेरे को. I'll go 25 then maybe. Let's see. चलो हम लोग फिर से आगे अपने इस पे. 10 मिनट है अपने पास. वी हैव 20 क्वेश्चंस टू गो. लेट्स सी. पी डॉलर क्यू का मतलब क्या है? पी इज नॉट लेस देन क्यू. पी इज नॉट लेस देन क्यू. पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यू. बराबर ना. पी इज नॉट. क्यू एंड आर का मतलब क्या है? क्यू इज नीदर लेस देन और इक्वल टू. क्यू इज ग्रेटर देन आर. ठीक है. आर परसेंट एस का मतलब क्या है? आर इज ग्रेटर देन एस. परसेंट और एंड का मतलब सेम है क्या? नीदर लेस देन नॉर मोर देन. अच्छा इक्वल टू. तो आर इज इक्वल टू एस. एस हैश टी का मतलब क्या है? एस इज लेस देन और इक्वल टू टी. सो टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एस. आई राइट इट लाइक दिस. टी परसेंट यू. टी इज इक्वल टू यू एंड यू स्टार वी. यू इज लेस देन वी. ऐसा कुछ आएगा. अभी आर एंड वी कांट बी कंपेयर्ड. कैन बी कंपेयर्ड. यस आर एंड वी कैन बी कंपेयर्ड. आर स्टार वी का मतलब है आर इज लेस देन वी, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट. वन इज फाइन. एंड क्यू एंड यू का मतलब क्या है? क्यू एंड यू तो कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज दे आर इन डिफरेंट रोज. नहीं कर सकते. सो ओनली वन. ओके नेक्स्ट देखते हैं. ई स्टार एफ हैश जी. ई स्टार एफ का मतलब ई इज लेस देन एफ. एफ इज ग्रेटर देन ई. एफ हैश जी का मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल टू जी. जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सॉरी जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ. ओके बस फिर से देख लेते हैं. वी शुड नॉट मिस आउट ऑन दिस वन. ई स्टार एफ का मतलब क्या है? ई इज नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू. ई इज लेस देन एफ. परफेक्ट.
एफ हैश जी का मतलब है एफ इज नॉट ग्रेटर देन, एफ इज लेस देन और इक्वल टू जी, परफेक्ट है। जी परसेंट एच का मतलब क्या है, जी इज इक्वल टू एच। के हैश एल का मतलब क्या है, के इज लेस देन और इक्वल टू एल। अब के एल पता नहीं क्या है, एल स्टार एम भी नहीं पता, एम एम हैश एच पता है। तो यहाँ से शुरू करते हैं, एम हैश एच से शुरू करते हैं। एम इज नॉट ग्रेटर देन, एम इज लेस देन और इक्वल टू एच, तो ये दूसरे रो में आएगा एच के हिसाब से, ठीक है। ये अगर देखते हैं, एल स्टार एम का मतलब क्या है, एल इज नीदर ग्रेटर देन, एल इज लेस देन एम, ये ठीक है। एंड के हैश एल का मतलब क्या है, के इज नॉट ग्रेटर, के इज लेस देन और इक्वल टू एल, के इज लेस देन और इक्वल टू एल, तो ये होगा। एंड क्या दिया हुआ है, काफी सारी चीजें, जे एंड पी, जे और पी नहीं पता क्या है, आई और के बचा। आई डॉलर के का मतलब क्या है, आई इज नॉट लेस देन, आई इज ग्रेटर देन के, तो ये आएगा आई ग्रेटर देन के। देन यू विल हैव पी डॉलर आई, पी ग्रेटर देन आई, एंड यू विल हैव जे एंड पी, जे इज ग्रेटर देन पी, ये मिलेगा। बट ये सब अलग अलग लाइंस में, सो आई कांट कंपेयर इंट्रा वो लाइन में। जे एंड एम आई कांट कंपेयर, अलग अलग लाइंस में है। एल एंड जी I can't compare. L and G I can compare because G is definitely greater than L. So L star G का मतलब L is neither greater than nor equal to, L is less than G. Yeah, only two follows. ठीक है, not exactly very friendly, so painfully. Okay. M star Q is always true. M star Q का मतलब क्या है? M is less than Q. M is less than Q होना चाहिए, ठीक है। And O hash S, O is less than or equal to S. ठीक है, इसको देखते बाद में। आई शुड गो फॉर दिस, बट ये पता नहीं, ये तो आई विल डेफिनेटली नॉट डू। सोनी विला 3 जनरेशन है, नहीं यार नहीं लग रहा मेरे को, सॉरी। आई माइट सी देयर इज समथिंग दैट आई कैन डू। अच्छा कुछ तो शेड्यूल है ये। एग्जैक्टली 3 पेपर्स हैव बीन शेड्यूल्ड बिटवीन, ये कितने एग्जाम्स हैं, 150 मिनट्स हैं। मॉर्निंग सेशन 10 to 12:30, आफ्टरनून 2 to 4:30, ठीक है। तो एक दिन में 2 ही पेपर होंगे, बेसिकली 2 वीक्स में हो रहे हैं, मंडे टू फ्राइडे हो रहे हैं। एंड हैज बीन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम टू अमंग 2 सेशंस। मेजॉरिटी ऑफ द लैंग्वेज पेपर्स आर शेड्यूल्ड इन द फर्स्ट वीक। पर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है मेरे को ये, ऑनेस्टली। I don't know. Find the odd one out. I'll say Marathi one because that is language. बाकी सब language नहीं है. मतलब it's, I know it's a very frivolous logic, but whatever it is, it is. ठीक है. चलो छोड़ इसको. Okay. ये क्या हो रहा है? 5 minutes. How many did we solve? We have answered 46 questions. ठीक है. So that tells me a lot of things, right? जो मैंने starting में था वही यहाँ पे consistent है more or less. Your friend is the type of person who always puts the needs of others first. She goes out of her way to help others who are in need. She feels sad when she sees someone who is sick or suffering. Empathy basically है, empathetic. Middle of action comes to raising money for charity. ठीक है, देखते हैं क्या है ये, altruistic, पैसा देती है किसी को, raising money for charity, yes. Altruistic तो ठीक है, understood. Sagacious is sage like wise. Is she wise? A तो होना ही चाहिए for sure, तो ऑप्शन B नहीं है, बराबर है ना, डिस्क्राइब, हाँ B नहीं है, ऑप्शन D भी नहीं है, ऑप्शन E भी नहीं है, तो A है या A एंड E है। एम्पैथेटिक तो बोला था मैंने, ठीक है, आई थिंक A एंड D. This seems to be right. Film studios often complain that they lose millions of dollars every year because people download pirated versions of movies rather than buying tickets and visiting the theaters. However, such a claim of misfortune is greatly exaggerated. Most of the downloads no serious interest in cinema. Losses of ठीक है, okay, understood. Supports the argument, okay. Most people viewers who download pirated versions do not enjoy the experience. मतलब ठीक है, interest नहीं है, that is the point. हाँ, most viewers who download would not have visited even if they were correct. This is right. This is very nice. इवन फिल्म स्टूडियोज डोंट सफर द लॉसेस, दे वुड स्टिल अंडरगो, नहीं फर्क पड़ता। म्यूजिक इंडस्ट्री तो अलग ही स्टोरी चल रहा है, रिस्क्स ऑफ पायरेसी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पॉपुलैरिटी, ये भी नहीं है, ठीक है। दिस इज मच बेटर, आई लाइक दिस। द एक्सपेक्टेशन ऑफ वोटर्स हैज इंक्रीज्ड, मेनी कंप्लेन दैट दे डू नॉट गेट इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, दे से दैट सिंस दे हैव वोटेड दे डिजर्व दिस नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, वेरी गुड।
अर्लियर देयर वाज अ रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर मिनिमम डिस्क्रिपेंसी, ये तो नहीं पता, ये तो नहीं बोल सकते. अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइडिंग इज लाइस विद द गवर्नमेंट, हाँ दिस इज फाइन, यस अग्री. सो टू इज इम्प्लिसिट मेरे हिसाब से. An extensive reading habit must really improve one's vocabulary because most people with a strong vocabulary are voracious readers. उल्टा हो गया ना, जिसका vocabulary अच्छा है वो ज्यादा अच्छा पढ़ता है, इस what ऐसे, ठीक है. In the absence of a strong vocabulary, it is next to impossible to develop a reading habit. हो सकता है, this could be an assumption. An extensive reading habit must improve one's vocabulary. उल्टा लॉजिक चल रहा है ये, मतलब अगर मेरे पास रीडिंग हैबिट है तो मेरा vocabulary बेटर है, कि या तो मेरा vocabulary बेटर है इसलिए मेरे पास रीडिंग हैबिट है. तो यहाँ पे दिस पीपल आर सेइंग दैट vocabulary बेटर है करके रीडिंग हैबिट है. An extensive reading habit familiarizes us with new words which we would have never come across in our otherwise daily lives. I don't know. I like both. मतलब अभी तक कहीं आया नहीं करके मैं both कर रहा हूँ, but not very sure of this. Not very sure of this. For a film that was over 9 years in the making, Ayan Mukherjee's Labor of Love Brahmastra Part 1. अरे शिवा number 1. Is an underwhelming attempt at fantasy fiction as it falls into its own trap of manufacturing hope in an audience that has become accustomed to Bollywood's long slumber at the box office. ठीक है. To be honest, it's a task to pinpoint exactly where Brahmastra falters because the mishaps just don't end. Whether it's the excruciatingly contrived meet cute between the two protagonists, Shiva and Isha, where the former follows the later into an elevator after he's enthralled by her in a single glance, or the trite dialogues that follow, the film reminds. Take it. Very good. क्रिटिसिज्म क्या है, फिल्म बेस्ड ऑन फैंटेसी यूजुअली फेल एट द बॉक्स ऑफिस. नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है. फैंटेसी फेल टू मैन्युफैक्चर होप इन द ऑडियंस. फिल्म्स की बात नहीं कर रहे ना, एक ही फिल्म की तो बात कर रहे हैं. लॉन्ग टाइम टू मेक का भी इशू नहीं है, विद मेनी मिसहैप्स हो सकता है. फोकस ऑन ये वाला हो सकता है, कोर एस्पेक्ट पे काम नहीं किया तुमने. सबसे लंबा ऑप्शन जनरली इज द राइट वन. लेट्स सी. फंडामेंटल्स ना वही है, करेक्ट, यू राइट. कोर एस्पेक्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं. लेट्स सी, हो गया. अरे वी आर डन विद एलआर. कितना किया? 49 एंड सॉरी, आई एम सो सॉरी, 51 आंसर किया. 24 नहीं किए, बट आई थिंक इट्स अ टाइट सेक्शन है, डिफिकल्ट है. आई थिंक आई विल बी हैप्पी विद अ स्कोर ऑफ 120 125 से बहुत खुशी मिलेगी ऐसे मेरे को लग रहा है इन दिस पर्टिकुलर टेस्ट. ठीक है, देख क्या चल रहा है यहाँ पे. रिलेशनशिप डजंट एग्जिस्ट. इसका ये लग रहा है मिरर इमेज, ये लग रहा है वाटर इमेज, ये लग रहा है मिरर इमेज, सॉरी वाटर इमेज, मिरर इमेज, फाइन. This seems to be the mirror image. This also seems to be the mirror image, which is wrong. So 3 होना चाहिए मेरे हिसाब से. इसका क्या चल रहा है यहाँ पे, this ऐसे कुछ होना चाहिए. ये इसका वाटर इमेज है, ये इसका मिरर इमेज है, फाइन. दिस सीम्स टू बी द मिरर इमेज. ये वाटर इमेज है क्या? तो 4 भी गलत लग रहा है वैसे. एक सेकंड, जस्ट लेट मी चेक दिस वंस. ये क्या है? ऐसे है, ऐसे है. इसका मिरर इमेज विल बी दिस. इसका वाटर इमेज विल बी दिस. दोनों सेम है ना? हाँ, तो 3 इज राइट. आई थिंक 4 इज द प्रॉब्लम. 4 में नहीं बैठ रहा. 4 में इट इज नॉट वर्किंग एट ऑल. ठीक है, बच गए. इसका मिरर, इसका मिरर. ओके, तो इसका मिरर इमेज है, मिरर है, राइट. मिरर है, वाटर भी बोल सकते हैं. इसका मिरर है, ये वाटर है पक्का. ये मिरर कर दिया, ये मिरर कर दिया, ये मिरर कर दिया, तीनों मिरर कर दिए. ये मिरर हो गया, ये वाटर हो गया, ये भी वाटर बोल सकते हैं. आई थिंक दिस इज द वन, क्योंकि सारे के सारे मिरर हो रहे हैं. ये एक वाटर हो सकता है, बट बाकी दोनों मिरर ही हैं. ये वाटर है, ये वाटर है, ये मिरर है. आई थिंक 2. रीजनेबल आई कैन कंक्लूड. वाटर, water, mirror. Yeah, I think 2. So I should be able to get out of this by around 75 minutes. 70 to 75 minutes क्लॉक पे होंगे ना, तभी मेरे को यहाँ से बाहर हटना है. ठीक है. ये क्या है समझ में नहीं आ रहा. सॉरी, ये क्या इमेज है इसका? कुछ नहीं, मिरर इमेज. ये इसका मिरर लग रहा है मेरे को. नहीं, वाटर लग रहा है, सॉरी. दिस इज द वाटर इमेज ऑफ दिस. दिस सीम्स टू बी द वाटर इमेज ऑफ दिस. तीनों के वाटर वाटर ही लग रहे हैं मुझे तो यहाँ पे.
बट दिस डजंट मेक सेंस, ये 4 वाला कहाँ से आ गया, 4 वाला तो ही ना सही से, तो 5 5 ही है, ठीक है। Okay, so maybe the number increases or something. I'll have to expand this. I don't know if there is a zoom button. Zoom button नहीं है, so I will only expand it for myself. ठीक है, तो यहाँ पे 5 5 5 you get 4 5 5, you have I think 6 4 3, you get 5 4 3 4 4 3 3 4 4, तो ये 2 मेरे को गड़बड़ लग रहा है। 6 6 ठीक है, 4 4 ठीक है, 5 5 ठीक है, तो काउंट में मेरे को गड़बड़ लग रहा है। ये 4 4 ठीक है, ये 4 ये 5 हो रहा है, ये भी गड़बड़ लग रहा है, तो गड़बड़ है। लेट मी जस्ट सी व्हाई इज दिस गोइंग फ्रॉम 5 to 6 6 to 5, ये मेरा क्वेश्चन है। आई डोंट नो, आई एम नॉट एबल टू फिगर दिस आउट, सॉरी। इसमें भी 6 इज बिकमिंग 5 फॉर सम रीजन। इसमें यू हैव 5 4 4 4 एंड 6 6, तो एक इसमें रिड्यूस हो रहा है, एक इसमें भी रिड्यूस हो रहा है। ये 4 4 3 3 4 4 यहाँ पे रिड्यूस नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, इधर हो रहा है क्या रिड्यूस? एम आई नॉट सीइंग समथिंग प्रॉपर्ली? 5 5 4 इसमें भी रिड्यूस हो रहा है, ओ एवरीवेयर इट्स रिड्यूसिंग। तो 3 में रिड्यूस नहीं हो रहा है बेसिकली, 3 में द नंबर इज रिमेनिंग कांस्टेंट, सो 3 शुड बी द आंसर मेरे हिसाब से। अगेन आई एम नॉट लुकिंग एट मिरर वाटर एट ऑल, आई एम जस्ट लुकिंग एट दिस थिंग। ओके, ऊपर का बिकम्स क्लॉकवाइज 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 क्लॉकवाइज, ठीक है। बीच वाला क्लॉकवाइज बीच में आता है, क्लॉकवाइज 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 क्लॉकवाइज, ठीक है। नीचे वाला क्लॉकवाइज राइट में चलाता है, क्लॉकवाइज राइट में, क्लॉकवाइज नहीं हो रहा ना, तो 3 इज द रॉन्ग, 3 इज द रॉन्ग आंसर, या 3 इज रॉन्ग। थर्ड एलिमेंट क्लॉकवाइज जाना चाहिए 90 डिग्रीज। ये क्या है? तो ऊपर वाला 90 एंटी क्लॉकवाइज, 90 क्लॉकवाइज, 90 एंटी क्लॉकवाइज, 90 एंटी क्लॉकवाइज, 90 क्लॉकवाइज, 90 एंटी क्लॉकवाइज, 1 and 2 look fine. 90 एंटी क्लॉकवाइज, 90 क्लॉकवाइज, 90 एंटी क्लॉकवाइज इज फाइन। 90 एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, 90 क्लॉकवाइज, ठीक है, एंड 90 एंटी क्लॉकवाइज, ये गलत है, 4 इज रॉन्ग। 90 एंटी क्लॉकवाइज, 90 क्लॉकवाइज, 90 एंटी क्लॉकवाइज, 4 इज रॉन्ग। So the elements are remaining as it is. तो जो ये वाला एलिमेंट है वो ऊपर ही होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। सो द लॉलीपॉप हैज टू बी डाउनवर्ड फेसिंग, सो माय आंसर इज नॉट 1 और 4। एरो यहाँ पे उल्टा है, एरो, तो एरो का क्या हो रहा है? एरो थर्ड सेकंड फ्रॉम द बॉटम एंड व्हाटएवर 90 ऊपर की तरफ जा रहा है, तो सेकंड फ्रॉम द बॉटम नीचे की तरफ जाना चाहिए, उसको उल्टा है तो सेकंड फ्रॉम द बॉटम नीचे की तरफ जाना चाहिए। दिस इज नॉट द आंसर, आई थिंक 5 इज द आंसर, देन एक ही बचा मेरे को। ओके, OGHPILARXQ, 3 में वॉवेल है, एक में नहीं है। O is the 15th letter, 15 and 7. H is 8. P Q R S OP 16. Yeah, 24, 20 to 24. Okay. 9 and JKL 12, 21. 1 and 18 RST. X and Q. PQ is 17 and X is XYZ 24. नहीं वो तो नहीं लग रहा। कितना है? 41, 19, 21, 24, 22। नहीं, ऑड इवन भी नहीं है, वॉवेल कॉन्सोनेंट भी नहीं है। सिमेट्री देखते हैं, विजुअल रीजनिंग है। ओ सिमेट्रिकल है, जी नहीं है। एच सिमेट्रिकल है, पी नहीं है। आई सिमेट्रिकल है, एल नहीं है। ए सिमेट्रिकल है, आर नहीं है। एक्स सिमेट्रिकल है, क्यू नहीं। ओ का वाटर मिरर सेम होगा, एच का वाटर मिरर सेम होगा, 3 का वाटर मिरर सेम होगा, 5 का वाटर मिरर सेम होगा, ए का वाटर मिरर अलग होगा। सो 4 में भी ये क्या हो गया? आई रिमेंबर सीइंग दिस वन। तो यहाँ से यहाँ पे आई कैन डायरेक्टली गो, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे आई कैन डायरेक्टली गो, यहाँ से ऐसे ऐसे करके आई कैन गो डायरेक्टली अभी।
यहाँ से if I go, am I able to go from here to there? ये वाले में। सो ये डैश से अगर मैं शुरू करता हूँ तो आई विल बी एबल टू गो ऐसे ऐसे करके मैं पजल से पहुंच जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे अगर देखता हूँ तो यहाँ से ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे जाएगा अंदर। यहाँ पे दिस इज अ डेड एंड एंड दिस दीज टू आर नॉट कनेक्टेड। 5 ये वाला जो है ना, यहाँ से इफ आई स्टार्ट ड्रॉइंग अ लाइन, वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, या फिर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे खत्म होगा, या 5 आई थिंक इज द आंसर। 5 में दोस टू लाइंस कैन नॉट बी रीच्ड बाय विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल, दैट काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है इसमें, we have 7 or 8 more minutes. Let's see. Two adjacent diagrams may have been interchanged. Okay, so 45 degrees clockwise, 90 degrees clockwise. Then 45 degrees anti-clockwise. नहीं नहीं, sorry, 45 degrees clockwise, 90 degrees clockwise, 45 degrees clockwise, ये थोड़ा 4 ऑफ लग रहा है। 90 अगर करता मैं, आई थिंक 4 and 5 आर इंटरचेंज। आई टेल यू भाई, यहाँ पे 45 डिग्रीज क्लॉकवाइज घुमा, फिर 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज घुमा, फिर 45 डिग्रीज क्लॉकवाइज घुमा, फिर 90 घूमना चाहिए था। सो दिस शुड हैव बीन हियर, फिर 45 डिग्रीज एंड फिर 90 डिग्री। सो 5 and 4 शुड बी इंटरचेंज। तो मेरा आंसर शुड बी 4। 4 और 5 को इंटरचेंज करना पड़ेगा। ओके, दिस इज अ वेरी कॉमन सीईटी क्वेश्चन जैसे लग रहा है, देखा हुआ लग रहा है, लॉजिकल सीरीज। ओके, 90 90 45 90, तो 90 ही होना चाहिए मेरे से। अच्छा, वो सॉरी, ओ ओके ओके, वही मैं सोच रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ हो गया। सो फर्स्ट एंड थर्ड शुड बी द एक्सट्रीम्स। सो 1 and 3 एक्सट्रीम होना चाहिए मेरे हिसाब से। आई थिंक दिस इज द वन, बिकॉज वर्टिकल 45 90 45 एंड वर्टिकल, तो 2 वर्टिकल शुड बी दी बुक एंड्स, क्योंकि बाकी सारे यूनिक पोजीशंस है। मेरे हिसाब से ये होगा। लेट्स सी। ये उल्टा हो रहा है। अच्छा सॉरी। ओके, सो नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। सो अगेन ये भी साउथ वेस्ट है। ओके सॉरी, तो फिर ये बीच में आना चाहिए, जो जिसका कुछ रेलेवेंस नहीं है। ये दो सेम है ना, तो 1 बीच में आना चाहिए मेरे हिसाब से। Oh, there is no option with 1 बीच में। ठीक है, अप डाउन राइट अप राइट। ठीक है, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। 2 5 4 1 3। 2 में बॉटम, देन 5 एंटी क्लॉकवाइज 90, देन एंटी क्लॉकवाइज 90, देन क्लॉकवाइज 90। सॉरी 2 5 4 1 3। 2 5 एंटी क्लॉकवाइज 90, एंटी क्लॉकवाइज 90 एज इट इज, एंड क्लॉकवाइज 90। थोड़ा ऑफ लग रहा है। 4 1 2 3 5 4 अप, ओके, 1 स्टे, 2 ऑपोजिट, 3 कुछ तो रैंडम है, ये भी नहीं लग रहा। 1 4 3 5 2 में क्या चल रहा है? अप, स्टे, 90 क्लॉकवाइज, स्टे एंड दिस इज स्टिल फाइन। ये मेरे को फिर भी थोड़ा बेटर लग रहा है। 2 5 3 1 4 बॉटम, एंटी क्लॉकवाइज, स्टे, एंटी क्लॉकवाइज, स्टे, ये भी ठीक लग रहा है। 2 1 4 5 3 2 1 ऑपोजिट, स्टे, एंटी क्लॉकवाइज, स्टे। टेक्निकली ये भी ठीक लग रहा है। व्हाट अबाउट द ट्रायंगल 1 4 3 5 2? देखते एक बार। 1 4 90 एंटी क्लॉकवाइज, स्टे, 90 anti sorry 90 clockwise, same 90 clockwise and stay. This is fine. 2 5 3 1 4 2 5 stay, 3 90 anti clockwise, 1 गड़बड़ है, ये तो नहीं होगा। फिर 2 1 4 5 3 2 1 opposite, 90 clockwise, नहीं ये भी नहीं लग रहा। I think this is right. What I marked is right. Does not fit in the group. I don't know 6. Okay, 5 and 1, 4 and 4, 5 and 0। ठीक है, एक बार डॉट्स और क्रॉसेस देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 डॉट्स, 1 क्रॉस, या फिर आई जस्ट राइट 6 and 2 लाइंस। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट्स एंड 1 2 3 4 5 7 8 लाइंस। यहाँ पे 1 2 3 4 5 डॉट्स,
and you have 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lines. You have 1 2 3 4 5 6 मतलब 12 lines and 3 dots, and यहाँ पे you have 4 dots and 8 lines. क्या करना कैसे? Dots are always less than ये 3 4s are 8 1s are 4 2s are 5 2s are 3 4s are, बट ये उल्टा है, इसमें डॉट्स ज्यादा है कंपेयर टू क्रॉसेस. पता नहीं, इट्स अ वेरी लेम लॉजिक, आई डोंट थिंक इट्स राइट, बट छोड़ो, इसको कर लेते हैं. ओके, अच्छा फिर से इसको चेंज करने का है. लेट्स सी, एरो एट द टॉप, एरो एक है ना, एरो एक है, थर्ड में नीचे चला जाता है, फिर 5 में नीचे चला आता है, फिर वापस 1 पे आता है, फिर थर्ड पे जाना चाहिए था आइडियली. तो अगेन 4 एंड 5 मेरे हिसाब से, 4 एंड 5. So third, then 5, then 4. Yeah, I think 4 and 5 again. I don't understand. क्या करना है इसमें? Symmetry है ना, basically symmetry देखना है मेरे को. 5 seems to be symmetrical, 4 seems to be symmetrical, 3 seems to be symmetrical, 2 seems to be symmetrical, 1 में symmetrical ही लग रहा है. 4 नहीं लग रहा मेरे को symmetrical से exactly. Yeah, 4 doesn't seem to be symmetrical. 4 is a reflection. I'll go with 4 यार, पता नहीं. Instincts. Let's see. ये क्या है? 4 and 8, 2 and 4, 5 and 11 तो नहीं, 3 6 1 2 यार. तो 5 and 11 नहीं, 5 10 होना चाहिए था. 1:2 का रेशियो, आई एम अज्यूमिंग, पता नहीं. डॉलर, डॉलर डाउन, देन आई थिंक इट शुड बी दिस वन. ये तो उल्टा डॉलर लग रहा है इसमें, तो ये ओरिएंटेशन भी चेंज हो गया. तो आइडियली डॉलर शुड बी हियर, थर्ड पे आना चाहिए. तो दिस ऑप्शन 3 इज डेफिनेटली नॉट राइट, ऐसा मेरे को लग रहा है. नॉट इक्वल टू यहाँ पे जा रहा है, नॉट इक्वल टू नीचे आ रहा है, नॉट इक्वल टू आ रहा है, तो नॉट इक्वल टू शुड बी इन द मिडल मेरे हिसाब से. तो 4 and 5 डोंट सीम टू बी राइट. तो 1 and 2 में से आंसर होना चाहिए. 1 and 2 में क्या डिफरेंस है? क्वेश्चन मार्क ओरिएंटेशन देख लेते हैं, तो दैट सीम टू बी इजियर वन. तो ये यहाँ चला गया, बीच में आ गया, ऊपर चला गया, राइट में चला गया. तो नीचे लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट में आना चाहिए. दिस इज फाइन. एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका मिरर इमेज बन रहा है, यहाँ पे वाटर इमेज बन रहा है. तो यहाँ पे मिरर इमेज बनना चाहिए मेरे हिसाब से. मिरर इमेज है ही नहीं. ठीक है, बट ये दोनों कांस्टेंट भी नहीं बोल सकते ना. ठीक है, एक चीज करते हैं. दिस आई इज कमिंग हियर एंड इट इज फॉलिंग. तो ये भी फॉल करना चाहिए. आई थिंक 2 होना चाहिए, 90 डिग्री क्लॉकवाइज फॉल होना चाहिए. ये डॉलर 90 क्लॉकवाइज फॉल हुआ ना, ये आई 90 डिग्री क्लॉकवाइज फॉल हुआ, तो ये क्वेश्चन में भी क्लॉकवाइज ऐसे गिरना चाहिए. आई थिंक दैट इज द वन. ठीक है, आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट डन विद दिस वन. एक बार एक देख लेते हैं जल्दी से. सो ये पूरा का पूरा नीचे और ऊपर रिफ्लेक्ट हो गया, तो पूरा नीचे यू विल हैव दिस एंड उसका ऊपर रिफ्लेक्शन होगा. आई थिंक ऑप्शन 3 होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो 3 होना चाहिए. ये क्या है? 4 5 5 5 5. कुछ समझ में नहीं आया. ओके ओके, आई कैन अंडरस्टैंड समथिंग. तो साइड के 2 शिफ्ट हो रहे हैं, देन बीच के 2 शिफ्ट हो रहे हैं, देन व्हाट इज शिफ्टिंग? ये समझ में नहीं आया. फोर्थ आई डिडंट अंडरस्टैंड. अच्छा, ओ अच्छा, इट्स नॉट अ सीरीज, आई हैव टू फिगर आउट द सीक्वेंस. दैट मेरे को तो 1 के बाद 4 ही ठीक लग रहा है वैसे, ऑनेस्टली. इट इज एटलीस्ट मूविंग समवेयर. I don't know. 1 4 should ideally be the link. I'll go with this. I'm not sure. 2 5 1 4 2. मतलब टेक्निकली अगर मेरे को गेस वर्क करना है तो 2 से शुरू होना चाहिए मेरा फिगर.
and it should end in a 4. So मेरे हिसाब से तो ये भी आंसर हो सकता है 25314 25314. ठीक है, I'll go with this. Probabilistically I'm saying 2 से 2 आंसर ऑप्शन शुरू हो रहा है, 4 से 2 ऑप्शन खत्म हो रहे हैं. So I'll go with this. स्क्वायर सबसे अंदर आ जाता है. अच्छा, स्क्वायर अंदर आता है, ट्रायंगल बाहर आता है. ठीक है, स्क्वायर अंदर आएगा, ट्रायंगल बाहर जाएगा. ट्रायंगल आई डोंट थिंक विल चेंज इट्स ओरिएंटेशन. Triangle will not change the orientation. Square will come inside and square will become shaded. Yes. So 5. ठीक है, थोड़ा सा आई एम टेकिंग मोर टाइम देन व्हाट इज रिक्वायर्ड. ठीक है, इसको बाद में करते हैं. नॉट रिक्वायर्ड. ओके, दिस सीम टू बी फाइन. ये इसका क्या है? ये इसका मिरर इमेज है. तो ये किसका मिरर इमेज होगा? यू विल हैव अ वाई लाइक दिस. सो ऑप्शन 1 2 3 तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से. 4 हो सकता है, 5 भी नहीं होना चाहिए. तो दिस वाई इज व्हाट आई एम लुकिंग एट. ये इसका वाटर इमेज है. तो ये इसका वाटर इमेज मतलब यू विल बेसिकली हैव अ वाई लाइक दिस. जो ये वाला एलिमेंट है ना, वैसा ही दिखना चाहिए. तो 4 इज नॉट माई आंसर. 1 या 2 में से मेरा आंसर हो सकता है. यहाँ पे अगेन यू हैव अ मिरर इमेज. तो इसका मिरर इमेज चाहिए मेरे को. सो यू शुड हैव समथिंग लाइक दिस. अंदर की तरफ आना चाहिए, विच इज फाइन. दोनों 1 और 2 में दोनों में सेम ही है. द प्रॉब्लम इज दिस वन. ठीक है, अब ये इसका क्या है? वाटर इमेज है. तो वाटर इमेज में यू शुड हैव अ वाई लाइक दिस. या 2 ऑप्शन 2 शुड बी द आंसर मेरे हिसाब से. लेट्स सी ये क्या है. 1 4. अच्छा, लॉजिकल सीरीज करेगा. ओके, 5 3 2 4 1 1 5. ओके, एक सेकेंड ना. 1 2. अच्छा, ये भी तो चेंज हो रहा है. 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6. सो मेरे हिसाब से या तो 4 या 2 से स्टार्ट होगा, देन 1 3, देन 1 4. तो आई थिंक 4 या 2 में से कोई भी स्टार्ट हो कर सकता है. बट देन 3 1 3 1 5 शुड बी द मिडल 3 टर्म्स. 3 1 5. दिस इज एंटायर रोटेशन ना ऐसे. इट्स अ 180 डिग्री रोटेशन. तो इसका 180 डिग्री रोटेशन मतलब द पेटल, डार्क पेटल विल कम नीचे, व्हाइट पेटल विल गो. 3 होना चाहिए. आई एम डूइंग दिस बिकॉज दिस इज सीम्स टू बी स्कोरिंग. अब ये नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा एलिमेंट्स है इसके अंदर. इसमें भी बहुत ज्यादा एलिमेंट्स है. आई कैन सी समथिंग. एक बार देखते हैं, इंटरचेंज ही करना है क्या? ठीक है, चलो. 45 डिग्रीज क्लॉकवाइज चला गया बेचारा. हाँ, 45 डिग्रीज क्लॉकवाइज, 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज. तो ये कुछ तो गड़बड़ है इधर. तो अगर मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, इफ आई पुट दिस वन, 5 को 1 पे डाल देता हूँ, तो 45 एंटी क्लॉकवाइज, बट इट रिमेन्स एज इट इज. ऐसे तो नहीं होना चाहिए. 45 पुट 4 हियर. ये कहाँ पे जा रहा है? बेसिकली 1, देन 2, देन 3, देन 1, देन 2, देन 4. एक नीचे, 2 आगे, एक आगे, 2 पीछे. थोड़ा गड़बड़ लग रहा है ये. लेट मी जस्ट थिंक दिस वन. अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़. और कुछ दे सकते, म्यू दे सकते हैं. म्यू म्यू यहाँ पे है. म्यू पूरा ही चेंज हो गया है. बट यहाँ पे म्यू इज ये एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज. यहाँ पे इट इज 45 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज. ये गड़बड़ है ना. सॉरी अबाउट दिस. ठीक है, आई कांट सीम टू अंडरस्टैंड. ठीक है, छोड़ो. 69 मिनट्स लेफ्ट. विल गो टू वर्बल. वर्बल जल्दी जल्दी करते हैं. ठीक है. Grammatically and contextually, the Canadian media scholar Herbert Marshall McLuhan observed, we look at the present dash through a rear view mirror. Yeah. Look at the present into a rear view mirror नहीं होता है. We look at it through a rear view mirror. Look through होता है generally. Look in a rear view mirror. Objects in the rear view mirror बोलते हैं ना generally. Look through a glass होता है. Look in a mirror होता है मेरे हिसाब से. ठीक है, चलो. आई लुक माई सेल्फ इन द मिरर होता है. इन थ्रू द मिरर नहीं होता.
which of the following is not true? ठीक है, the book understanding the media यहीं पे दिख रहा है, ये तो एग्जैक्टली में स्पेलिंग गलत लग रहा है मेरे को. Understanding media, ठीक है, conveys is that human is shuffling towards 21st century in the shackles of 19th century perceptions. Okay, shuffling towards the 21st century in the shackles of, हम वन तो ठीक है, ए तो ट्रू लग रहा है, तो ये तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी आर नॉट माय आंसर्स. मैट्रिक्स ड्रिवन मॉडल, मैट्रिक्स ड्रिवन मॉडल कहाँ पे है? यहाँ पे तो प्रेजेंट थ्रू अ रियर व्यू मिरर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, लुक्स एट द प्रेजेंट थ्रू अ रियर व्यू मिरर, सो गो विद दिस. सो दैट्स व्हाट द फर्स्ट इंस्टिंक्ट वाज राइट. बेकार का सोचा मैंने, ज्यादा सोचा, ठीक है. एनीवे, सो मैट्रिक, अगर वो गलत है तो ये भी गलत है. द मैट्रिक्स ड्रिवन मॉडल लुक्स एट द प्रेजेंट थ्रू अ रियर व्यू मिरर, advocates the plurality of views, eschews the plurality of views. Yes, तो नहीं कर रहा ना बेसिकली, एडवोकेट नहीं कर, तो बी इज नॉट ट्रू. मैक्लुहान एंड मॉरिसन्स व्यूज डिफर फ्रॉम ईच अदर. मैक्लुहान कहाँ गया? मैक्लुहान यहाँ पे है, फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, तो ओनली बी होना चाहिए फिर. But for humans as an advanced species, our tendency to separate and judge those not in our clan as the enemy, our tendency to separate and judge those जो हमारे क्लैन में नहीं है वो हमारे enemy है, as the vulnerable and the deficient needing control. Has a long history of limited to the animal world or prehistoric man. समझ में नहीं मेरे को, हम उसको enemy देख रहे हैं as the vulnerable and the deficient needing control. Okay, ठीक है, चलो let's see. Humans have not been able to cope with other species ever, have surpassed all tests to go superior to other species. Humans won't be able to control other species due to their own lack. समझ में, this seems slightly off to me, मतलब I'm not able to understand what they're trying to say. मतलब अगर मेरे opposite में है तो फिर why will I, तो I can understand that they are the enemy, ठीक है. As the vulnerable and the deficient needing control क्या होता है? Okay, humans are not able to cope with other species ever. I think this is right. This seems to be right to me, honestly. A मेरे को ठीक लग रहा है. Humans have surpassed all tests to go superior to other species. अब ये तो नहीं पता मेरे को. Won't be able to control other species with their own lack. ये भी तो नहीं बोल रहे, होप तो दे रहे हो, ठीक है. I will go with only A. Not very sure of this, but only A seems to be nice. ठीक है. बोल्ड लेटर वर्ड्स आर इनकरेक्ट. इगैलिटेरियन का तो स्पेलिंग ही गलत है. पोइग्नेंसी ठीक है, आर्बिटर फिर भी ठीक लग रहा है, मतलब कॉर्लरिस भी ठीक लग रहा है. इगैलिटेरियन का स्पेलिंग गलत है. ग्रिम, ग्रिम इज सीरियस, कैन रिप्लेस द वर्ड ग्रिम. ग्रिम पास्ट. सॉम्बर तो नहीं बोल सकते, जेंटल भी नहीं बोल सकते, तो ग्रिसली होना चाहिए. ओनली बी नहीं है क्या ऑप्शन में? वेयर इज दिस, सॉरी, आई एम सो सॉरी. हर राइटिंग्स एंड अप्रोच, दिस वन. ग्रिम पास्ट एंड प्रेजेंट, तो सोम्बर भी डाल देंगे चलो. ग्रिसली तो मेरे को लग रहा है बी तो होना चाहिए, तो ऑप्शन ए एंड बी और बी एंड सी. तो जेंटल पास तो नहीं होगा, तो ए एंड बी ही होना चाहिए फिर मेरे हिसाब से. सो ऑप्शन सी विल बी द वन दैट आई विल गो फॉर. एस्च्यू, एस्च्यू इज, मतलब मेरे हिसाब से तो वो होना चाहिए था, बट पीछे वाले में तो लग रहा है कि छोड़ देते करके. इज नॉट द मीनिंग, हाँ, तो रिनाउंस इज नॉट द मीनिंग, स्वेयर ऑफ इज नॉट द मीनिंग, शन इज नॉट द मीनिंग, सो टेक ऑन इज द आंसर. बाकी सारे तो गिव अप है ना. व्हाट इज द स्टाइल ऑफ द पैसेज, ये पता नहीं मेरे को. बहुत सारी चीजों की बात करें, परफंक्टरी तो नहीं होना चाहिए. नरेटिव, नरेशन तो नहीं है, इट्स बेसिकली टॉकिंग अबाउट ये. एक्सपोजिटरी है, एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं बोल सकते.
कंटेंशियस भी नहीं बोल सकते क्या, आई डोंट नो. एक्सपोजिटरी की नरेटिव, आई गो विद नरेटिव. थोड़े कोट्स वोट्स दिए हुए हैं तो आई एम अज्यूमिंग नरेटिव होगा, पता नहीं. Poignancy is say thoughtful kind of a thing. Pathos, yeah. I think pathos. Some people considering journalism to be एक ही चल रहा है option. Nice. Journalism. What the benefits of the two tracks of journalism are? ठीक है. Bearing witness and making sense. They argue that journalism focuses on a narrative of gloom that forces many people to avoid news altogether. However, for many, these two tracks contribute to strengthening the agency of citizens as they help them retain their curiosity to know about the happenings around them and cultivate a will for change. ठीक है, दोनों ही हैं. A media focus on narrative of gloom that forces people to avoid news altogether. Some people, yes. So A is fine. A मेरे को ठीक लग रहा है. It helps people retain their curiosity to know about the happenings around them and cultivate a will for change. ये भी ठीक लग रहा है. दोनों भी बोल रहे हैं लोग. It's focused on capsuling which are propelled by metrics and analytics. हाँ, ये पता नहीं मेरे को. Silicon Valley is custom built news feed. Its focus is more on capsuling ये and this and that. People are not considering ना. Silicon Valley is considering, but the problem is Silicon Valley is not ये ना. It's composed of individuals, right? So मेरे को तो तीनों भी ठीक लग रहा है, but I'll go for A and B. I'll go with A and B. Silicon Valley को शायद मैं individual नहीं ले सकता. अच्छा, कुछ और चल रहा है यहाँ पे. Which of the following can fix the blank given both contextually and grammatically? Blank कहाँ पे है? यहाँ पे है. The other variations, the team argues, would have predisposed the dogs to be hypersocial with humans. A dash that humans would then have selected as for as dogs were bred over generations. Trait वही लग रहा है मेरे को. A trait select करते हैं ना जनरली हम लोग. जीन दिया हुआ है तो मेरे हिसाब से तो ट्रेट ही होना चाहिए. Seems right. All statement is not true. A few genetic changes caused the domestication of dogs. Seems to be true. Survival of the friendliest था. Genes related can make the dogs friendlier. ठीक है, this is fine. So A तो ठीक लग रहा है मेरे को. So options C तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से. It is fascinating that a handful of these things. तो एक बार देखते हैं कहाँ पे दिया हुआ है. It is fascinating. Von Holt says. Williams Buren ने नहीं बोला ये वाला पार्ट. ठीक है, तो C is definitely wrong. बी रॉन्ग है कि नहीं देखते हैं. सिंड्रोम्स दैट अफेक्ट सोशल बिहेवियर्स ऑफ डॉग्स डायरेक्टेड ह्यूमंस फाउंड बाय मोनिक यूडल. मोनिक यूडल कहाँ पे है? आई कांट सी मोनिक यूडल एट ऑल बाय द वे. इधर आई एम नॉट एबल टू सी, बट या तो है ही नहीं. हाँ, यहाँ पे दिख गया. को ऑथर, ओके. More complex form appear to be engaging in excessive friendly behavior increase the amount of time they spend near us and watching us. In turn, she says that gives dogs the opportunity to learn about our behavior, maximizing their success while living with us. सिंड्रोम कहाँ से आ गया इसके अंदर? आई थिंक ओनली सी होना चाहिए बिकॉज को ऑथर है ना वो, तो मे बी दैट्स व्हाई आई एम सेइंग. बट ठीक है, गलत हो तो यार, आई एम नॉट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस. इंक्लिनेशन टुवर्ड्स ह्यूमंस, ठीक है. ये मेरे को WBSCR 70 तो ठीक लग रहा है, ये वाला सोशल बिहेवियर्स डायरेक्टेड एट ह्यूमंस, यस. तो ए तो होना चाहिए मेरे हिसाब से. स्टार्च डाइजेशन इन डॉग्स एंड डोमेस्टिकेशन. तो मैं स्टार्च, हाँ यहाँ पे कुछ दिख रहा है. लिंक बिटवीन हैव रिसेंटली बीन कॉल्ड इनटू क्वेश्चन, तो नहीं है बेसिकली. अच्छा, नॉट कंसिडर, ओ ठीक है ठीक है. तो बी आई थिंक शुड बी द वन. सो ये होना चाहिए. बी तो है ही. डॉग स्पेंडिंग मोर टाइम अराउंड ह्यूमन.
I say only B. C मेरे को नहीं लग रहा, देख के पता नहीं, might be wrong. Bold letter words are incorrect. Okay. It is great to see initial genetic evidence. Makes sense. This is another piece नहीं है, piece होना चाहिए, PIECE होना चाहिए, तो गलत है. तो फॉलोइंग कैन वो अंडरलाइन, ओके, अंडरलाइन को रिप्लेस करना चाहिए. अंडरलाइन में एलिमेंटल हो सकता है, नीचे जो होता है वो एलिमेंटल जो जिसे शुरू होता है सब कुछ. बेसिक हो सकता है, हिडन भी हो सकता है वैसे. नॉट मच इज नोन अबाउट द अंडरलाइन जेनेटिक्स. बेसिक तो होना ही चाहिए आई थिंक, एंड सी भी होना ही चाहिए, हिडन भी होना ही चाहिए, एलिमेंटल भी होना चाहिए. थिंक एवरीथिंग इज फाइन. पता नहीं, आई विल गो विद दिस. आई विल गो विद दिस. Molecular affirms in the passage that dogs appear to be engaging in excessively friendly behavior that increases the amount of time. Yes, ये A is fine, पढ़ा था हम लोगों ने. Complex वाला cognition होता है वो भी I think she had said. Interest instead of developing a more complex form of cognition, ऐसा तो नहीं होता more complex form of cognition. ठीक है, तो B नहीं होना चाहिए आंसर के अंदर. So it's either A or C or A and C. Dogs seek opportunity to learn our behavior. Yeah, force us into living with them. Force थोड़ा मेरे को ज्यादा लग रहा है. बट ठीक भी लग रहा है, मतलब फोर्स करेंगे ना, ऑफ कोर्स दे आर बीइंग नाइस टू अस, तो विल डेफिनेटली बी. I'll go with A and C. चलो, let's see. Let's see. Not very sure. I would have gone for only A, but A and C ठीक लग रहा है. देखते. Which of the following can be concluded from the sentence given in italics? DNA might reveal how dogs became man's best friend. It is only the DNA that can explain? No. It is possible to understand? Yes. So B, A तो नहीं लग रहा मेरे को होगा. तो A, first and fourth options are out. The author believes in the approaches used by experts to reveal human relationships with dogs. ठीक है, this is also fine. तो B and C होना चाहिए, but मेरे हिसाब से तो फिर वही होगा. Only B ही होना चाहिए. It is possible to understand, nothing beyond that. ठीक है. Scarcely had I reached the station, then the train left नहीं होता, that या होना चाहिए think, या when the train left. Scarcely had I reached the station when the train had left. नहीं, when the train left. हाँ ठीक है. So 3 I think is right. Scarcely had I reached the station when the train left. I think this is right. ये क्या है? The 5 does not conform to the rules of grammar. गलत कौन कौन से देखना है ना. ठीक है. The jury are divided about the evidence. तो divided है तो jury को हम लोग plural ले सकते हैं. He is slow but steady. ठीक है. Time and tide wait for no man. ठीक है. If our employees will not quit picking at one another, we did not meet our goals. ये तो गलत है. Neither Ram nor his friends play basketball. ठीक है. This is fine. 4 होना चाहिए फिर मेरे हिसाब से. If our employees will not quit picking at one another, we did not meet our goals. We would not have met our goals. ऐसे कुछ होना चाहिए अगर होगा तो. ठीक है. His reputation for dash was enhanced by the youthfulness of his appearance. Reputation for, okay. The young man knew precisely how dash this could be. His dash appearance masked a dash intelligence. तो मतलब लग रहा है कि वो बहुत young है करके. तो हाँ, callowness हो सकता है, mental keenness नहीं होना चाहिए, dishonesty भी नहीं होना चाहिए, ingenuity not really. Callowness I think is the one. Callow is थोड़ा carelessness होगा because of youthful है करके, but ऐसा नहीं है. How dash this could be, how wrong it could be, superficial yes, unfair भी बोल सकते हैं, shocking नहीं बोल सकते, harmful. Many who dash him would later rue their hasty judgment. Would judge him ऐसा कुछ होगा. 4 5 देखते हैं. Would underestimate. Many who underestimated him. This is nice. I like this. तो 4 भी देखते हैं. Strong क्या हो गया? Sorry. Okay, I don't know why strong was marked. ठीक है. His dash appearance masked a dash. Scruffy नहीं बोल सकते, juvenile फिर भी बोल सकते हैं. Juvenile experience, formidable intelligence. Strong intelligence तो कुछ होता नहीं है, smart intelligence नहीं होता, low intelligence नहीं होता, overhype नहीं होता, formidable या strong. Formidable होना चाहिए मेरे हिसाब से. Strong intelligence कुछ होता है ऐसा मेरे को लगता तो नहीं. Precisely how dash this could be. Advantages होगा ना, because बाद में उसको पता चलता था. तो maybe I'll go with advantages here. Let's see. Advantages, juvenile, ये नहीं हुआ क्या मार्क? ठीक है, सॉरी. Formidable and underestimated. ठीक है, this is fine. अभी इसका पैराग्राफ आने का 53 minutes left. I want to get done with this in another 13 odd minutes because we have done 2 RCs. I think we have
we can run through it. 25-26 क्वेश्चन बचे हैं मेरे हिसाब से, और 15-20 मिनट्स में आई थिंक आई शुड बी एबल टू हैंडल दिस. देखते हैं. इन देयर व्यू, मेरे को नहीं पता किसके व्यू में, you might feel awe for the things that are physically large but also for ideas that are conceptually vast. In their classic account of awe, I don't know, BD मेरे को ठीक लग रहा है. BDAC, let's see. You might feel awe, for example, at the end of this ये होगा in their view तो नहीं होना चाहिए ना, so CA होना चाहिए. This is not right. Clear response. Yeah, C के बाद A आना चाहिए. तो ऑप्शन 1 इज नॉट राइट, ऑप्शन 4 इज नॉट राइट, ऑप्शन 5 इज नॉट राइट. सो CADB है कि CABD है, देखते हैं. CA I like CABD. CADB में क्या होगा? I like CABD क्योंकि वो वास्टनेस को डिफाइन कर रहा है. एंड देन डार्विन सेइंग दैट थियरी वास्ट है करके मेरे को अच्छा लग रहा है. लेट्स सी. Halden was the best respected English scientist. Fair enough. Ironically, he may be best known for a quip. ठीक है. Asked what he had learned about God from he was inordinate fonts for Beatles. So ironically, he may be best known for a quip. तो quip वो है. So ACB होना चाहिए मेरे हिसाब से. ACB can be seen only here. So ACBD. That's not surprising. ठीक है, fine. I think I'll go for this. Fifth sentence rearrange करने के बाद. Okay. चलो I'll do this thing that I generally tell people कि जंबल पैराग्राफ से first पहले आएगा, last वो वाला तो देख लो at least. Lee wrote once, Lee's widespread impact, but that philosophy also presents an irony. Bruce Lee is the most influential. So D मेरे लिए सबसे पहले आना चाहिए. He had come to that epiphany young. तो fifth sentence है ही. So D dash 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 E and F G. 7 sentences हैं. ठीक है. तो that epiphany, अब कौन सा epiphany वो भी एक बार देख लेते हैं. I wanted to be like the nature of water. तो ये epiphany हो सकता है. Is a simply reflection of life's vision. वो epiphany नहीं है. But that philosophy also presents how do they grasp the man or the symbol he became. वो भी नहीं बोल सकते. Epiphany है. D तो नहीं आ सकता. He preached. ये B water. A response in an interview with Canadian journalist Pierre Burton. Okay. The world is still reckoning with the momentum he generated a brief life and the ways culture did not him. I think this is the one. Once wrote. ये epiphany है. उसको लगा से कि मेरे को वाटर जैसा बनने का करके. ठीक है. Then what happens? D में क्या दिया हुआ है? At age 32. ठीक है. In a sense, Lee's widespread impact in realms as described as political protest is simply a reflection of his life's vision. तो पहले आएगा मेरे हिसाब से. But that philosophy also presents a particular irony. But that philosophy also, कौन सा philosophy? We don't know, right? I like G as the last sentence because it's still reckoning ना, तो यहाँ पे ही हो रहा है. But ये खत्म बाकी कहीं पे बोला नहीं कि आगे जाके क्या होगा. So this is basically where it should end. I like B next because बाकी सारे facets को explore किया जा रहा है. So A, B, C and D, C and F are left. ठीक है. To the world he preached formlessness. So F बाद में आएगा शायद, water के बाद. And I will go with C here. देखते हैं. चलो whatever it comes, whatever happens happens. G should be the last sentence. Let's see. Fourth sentence A होना चाहिए मेरे हिसाब से. Second sentence B होना चाहिए. Penultimate should be F. Everything is in the option, so I am feeling slightly hopeful. Opening sentence तो D होना ही चाहिए. तो 2 या 3 मार्क्स तो इसमें मिल जाएंगे for sure. ठीक है, देखते हैं. That contains an error. The plight of the prisoners along with the cries of the wounded are enough. Plight is enough. So 3 होना चाहिए. Breakdown in tears. ठीक है. The management asked the workers to choose between higher wages and between and होता है. तो 3 गलत है. Fewer working hours is fine. If you would have politely requested Sam to help, he would have helped you. If you would have politely requested, he would have helped you.
If you had politely requested होना चाहिए. One seems to be wrong. I don't know. या तो no error या तो one होगा. In my opinion, the price of the goods, including all the taxes, are price is quite reasonable. So 4 होगा. Including all the taxes is a loss. Under pressure from the media, the minister assured the displaced people that he would look into the matter. ठीक है. Unwilling to appear dash, the junior intern restrained himself from dash any opinion. So exhibiting, showcasing any opinion, जो भी. Creating any opinion नहीं होगा, बताया नहीं है, create तो किया है. Sharing an opinion is nice. This is nice. Careless and sharing. Venturing any opinion तो नहीं होता, criticizing an opinion नहीं होता. I think this is right. Good coaches know that dash players who can follow instructions and positive self-affirmation are better team players than dash stars who are driven by inertia and moods. Ordinary players, ठीक है. Temperamental stars, very nice. This is a good one. Rookie stars, judgmental stars तो नहीं बोल सकते, hostile stars नहीं बोल सकते, disciplined stars तो नहीं है, finicky. Experienced players भी जरूरत नहीं है. Ordinary players and temperamental seems much better here. ये क्या है? Question क्या? Sorry, I didn't understand. Describe a certain situation. It's followed by A, B, and C. Which of the process most appropriately defines the? अच्छा ठीक है. Idioms की बात करते हैं. Okay. State has been facing the problem of unemployment. Most people are migrant workers. However, the economists have pointed out people in the state are pursuing a misguided line of thinking. ठीक है. Beating around the bush तो नहीं है. Imprudent reasoning I can say होगा. C हो सकता है. Beat around the bush is not looking at the main issue. Misguided line of thinking need not be beating around the bush. वो पूरा ही गलत है. मतलब beating around the bush is knowingly I am doing something. Make a long story short तो नहीं होना चाहिए. I think this is right. Let's see. The young man was arrested by the police because they suspected him of stealing the gold from the rich man's safe. Thief was actually the old lady who was a sweeper at the house. Release the young man. ठीक है. Let off the hook होना चाहिए. This is right, I think. Cry over spilt milk तो नहीं होता. Bite off more than you chew. You can chew भी नहीं होगा. ठीक है. Which of the following is currently used? Okay. Seeing the young man knows about meeting them, the girl's parents broke a code. Broke a code. Broke the ice होना चाहिए ना. Broke a code क्या होता है? तो A तो right नहीं है मेरे हिसाब से. So these are out. B and C ही बचा. On the way I met with an accident, made it to this meeting by the skin of my teeth. This is nice. There was still a lot of work to do. Therefore the boss had to call it a day. नहीं call it a day मतलब खत्म हो गया करके. But काम है तो खत्म क्यों करेगा? तो B ही होना चाहिए सिर्फ. Let's see 40 questions. We are on track. We have one more jumbled paragraph. One does not fit the narrative. Rearrange भी करना है और answer भी करना है. Okay, let's see. Studies say that whatever 85% number of languages spoken on the world, the loss of these endangered languages, कौन सा endangered languages नहीं पता. They are rich tapestries, ठीक है. An endangered language is considered whatever. This can be attributed mostly because to colonialization. तो थोड़ा weird लग रहा है. Mass loss of languages has become a disturbing phenomenon. ठीक है. I like A. Then E because mass loss of languages तो ये हो रहा है. This can be attributed, loss of languages can be attributed to something. And the loss of these endangered languages and an endangered language. So an endangered language हम लोग endangered languages पे कैसे चले गए? तो I don't like C वैसे. I like, but loss हो गया ना. और endangered मतलब अभी तक loss हुआ नहीं है. But B के अंदर वो दिया हुआ है, bold दिया हुआ है. तो maybe I will go with C. So I'll say B is the last one and C is the odd one out. Second sentence will be E, I think. पता नहीं, ये शायद पूरा गलत भी हो सकता है. I don't know. C is the odd one out. Let's see. I'm not sure of this at all. Third sentence is D. गलत हो, सब गलत होंगे एक साथ. Tapestries. Collage. टेक्निकली तो कुछ भी नहीं करना चाहिए बिकॉज वो नहीं है ना, प्लूरल नहीं है. बट दे आर रिच. कोलाज हो सकता है. कटलरी तो नहीं बोल सकते, तो बी तो रॉन्ग है फॉर श्योर. तो सेकंड एंड फिफ्थ ऑप्शन आर आउट. इंडेंटेशन भी नहीं बोल सकते, तो दिस इज आउट. ए या ए एंड सी ओनली. मेलांजे भी ठीक है, कोलाज भी ठीक है. आई विल गो विद ए एंड सी. ये तो पूरा ही मैं श्योर नहीं हूँ. ओके, ये क्या है? नेक्स्ट डोर नेबर जॉनी जर्मन एक्टिंग फ्रेंडली टुवर्ड्स यू बट बिहाइंड योर बैक हैज बीन पुटिंग यू डाउन टू अदर नेबर्स. गॉसिप मॉन्गर हो सकता है. Dumping is garbage in your background, but he pretended it was by accident. Duplicitous is a nice word वैसे. Two-faced kind of a thing. Okay.
ओल्डर रेसिडेंट स्टीलिंग कुरियर पैकेजेस दैट हैव गॉट डिलीवर्ड व्हेन दे आर नॉट होम, स्टीलिंग क्लेप्टोमेनिया भी हो सकता है. सो बी एंड ई तो पक्का होने चाहिए. ऑल द अबव है क्या? अच्छा एक्सेप्ट भी दिया है, सॉरी. सो ऑल एक्सेप्ट ए ट्रीजन, ओके, एंड ऑल एक्सेप्ट सी मेंडेशियस. आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट मेंडेशियस. मेंडेशियस इज, मेरे को लग रहा था इट्स वाइस सेजली करके, मेंडिकेंट वगैरह बोलते हैं ना वैसे टाइप का. आई विल गो विद ऑल एक्सेप्ट सी, मे बी, आई डोंट नो, पता नहीं, नॉट श्योर ऑफ दिस. Therapy psychosis, okay, you take therapy if you have psychosis. You take physiotherapy when you have fever, no. You do afforestation when you have soil erosion, yes. You take infection when you have antibiotics, no. You take dye if you need fabric, if you have fabric, nahi. Nahi. So I think afforestation and soil erosion. You do afforestation if there is soil erosion. Gladiator performs in an arena. Hospital does not perform in a doctor. Patient does not perform in a hospital. Grappler does not perform in a wrestler. Designer atelier हो सकता है. Lawyer does not perform in a witness stand. So performance वाला है ना ये तो, designer और atelier होगा. I don't know what atelier is, but mostly this is the answer. Feline panther, ठीक है. तो feline is a adjective for panther, I'm assuming, because panther is also a cat. Ursine is gorilla. Gorilla is not ursine. Ursa is bear. Ursa major, Ursa minor, greater bear वो बोलते हैं ना, bear वाला. Vulpine is fox, हो सकता है. Vulpine होता है ना, fox में क्या होता है और क्या होता है? Vulvers, god of war. Fox जैसी होते हैं, ठीक है. Aquilin, wolf, I don't know. Wolf generally vulvine होता है जितना मेरे को पता है. Equine is eagle. Equine is horse, तो ये तो नहीं है. Juvenile is child, ये भी ठीक है. Juvenile child हो सकता है. But I'll go with this. Maybe Wolfine fox. Maybe I'll do this. I'm not sure. Big, enormous. Big is small, enormous is larger. Warm and hot, ठीक है. Hot is a larger मतलब bigger degree of warm. Ardent and fervid, पता नहीं. Sadness, misery is again बराबर relationship है. Rain and flood भी same है, तो maybe B. B does not follow. Warm and hot does capture, same relationship ही है. Warm से बड़ा hot होता है, तो A is not my answer. Option C is not my answer. Rain and flood, रेन से फ्लड तो नहीं होता जनरली, हाँ दैट इज ऑल्सो ट्रू. रेन का कुछ और स्टॉर्म होगा, फ्लड तो नहीं होगा ना. फ्लड माइट नॉट बी बिकॉज ऑफ द रेन. तो डी ठीक है, डी कुड बी द आंसर, तो ये नहीं है. तो डी एंड बी या ओनली डी. आर्डेंट एंड फॉरविड, आर्डेंट फॉरविड सिमिलर ही होते हैं जितना वो पता है. आर्डेंट सपोर्टर, फॉरविड, तो आई विल गो विद दिस. ठीक है, वी डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट. अच्छा वी आर डन विद दिस. ओ हाउ मेनी डिड वी डू? आई थिंक वी अटेम्प्टेड एवरीथिंग हियर. 50 आंसर, ओके. यहाँ पे भी आंसर्ड 51 एंड 22. सो 123 कुछ आंसर हो गए. नाउ विल कम टू क्वांट. अभी देखते क्या करना है. चलो लेट्स सी. लेट्स लुक एट दिस डीआई पार्ट. 40 मिनट्स है. आई थिंक वी आर इन अ वेरी गुड पोजीशन. ओके, रेवेन्यू अर्निंग दिया हुआ है, ठीक है. हाउ मच परसेंट इज द एवरेज रेवेन्यू एबीसी मोर और लेस इन दिस वन देन दिस वन, ठीक है. पूरा निकालना पड़ेगा ना, और बहुत क्लोज ऑप्शन है यार. 27 28 क्या होता है यार. ठीक है, लेट्स सी. आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस. ठीक है, देखते चलो, बड़ा वाला देखते हैं. 1400, 2400, 2500 and 600, 3100, 3100 and 800, 3900 and 800 ही पकड़ो. 4700 and 1150, 800. I have no hope in this particular question यार. 1600, 1700 पकड़ लो. 600, 2300, 400, 2700, 800, 3500 and 950. 4500 ish. वेरी 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 क्लोज. 13 ही बढ़ रहा है, मतलब 30 से कम ही है. तो ग्रो तो कर रहा है, दैट मच इज ट्रू. तो मोर ही है, लेस तो नहीं है आंसर. सो 27, 28 और 29. आई विल गो 29 मोर. दिस इज अ प्योर गेस. आई हैव नो आइडिया. What should be the overall revenue earning in the financial year 2022 if ABC wants to achieve the same percentage change in its total revenue as it happened in 2020, 21 over 21? अरे क्या है ये, तो वही हो गया ना फिर. तो सेम क्वेश्चन रिपीटेड अगेन.
5800 का 29% कितना होता है? 29 इंटू 8, 116, 232, 145, 168, 168.2 कुछ बढ़ेगा, सॉरी 1682 बढ़ेगा, तो 82 8 7482 ऐसे कुछ होगा, 7500, एब्सोल्युटली नॉट श्योर। आई जस्ट 29% दोनों जगह पे। हैज शोन मोर देन ओवरऑल परसेंटेज चेंज, तो 29% से ज्यादा होना चाहिए। ओके देखो पावर तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, 30% पकड़ लो, चलो 30%। 675 का 30% कितना होता है? 67 इंटू 3, 201, राइट? 775, 875, 975, 300 के ऊपर है, तो रियल एस्टेट डेफिनेटली हैज ओवर अचीव। 1035, 1450, 40% डेफिनेटली ओवर अचीव। पावर नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन भी होना चाहिए, 500 इंटू 30 भी करेंगे तो 150 ही है, तो डेफिनेटली ट्रांसपोर्टेशन है। फर्टिलाइजर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, तो 3 होना चाहिए मेरे हिसाब से। दिस आई थिंक इज द फर्स्ट आंसर दैट आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट। combined percentage change in the revenue of power and fertilization, power and fertilizer कितना है? 585, बहुत ही क्लोज है। 585, 765, 1200, 1350 से हुआ है 580 एंड 755, तो 1355, 1335, सो 15 का लॉस ऑन 1350 इंटू 100, तो ये तो चला गया। 5 2 जार 10, 5 27 जार, 9 3 जार, 5 3 जार 10/9, सो 1.11% का डिक्लाइन। ABC expects 10% growth in the revenue earned from the infrastructure over the previous year for the next 3 years. Infrastructure 1100, okay, ठीक है, this is fine. 1100 से 3 years तक आगे जाएगा, और 945 के ऊपर मेरे को कंपेयर करना है 3 years ना, so 10% राइट इंटू 1.1, 1.1, 1.1, so 121, 1331, 14641, तो 1464.1, और ये है 945, 1045, 11, अच्छा डायरेक्टली करना है ना, -1, 464 प्लस 55 कितना होता है? 0.1911, 1519.1, सॉरी 519.1। व्हाट एम आई डूइंग? टोटल एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, अच्छा टोटल करना है इसका बैठ के, ये सबको ऐड करना पड़ेगा, सॉरी। ठीक है, सो ये छोड़ दो, ये 10 रुपया छोड़ दो, 0.1 तो हर जगह पे ही है। 4 + 1 5, 5 + 5 10, सो 4 + 1 5, 5 + 0 5, 6 7 8 9, 9 and 6 15, 1 10 11 12 13 14 15 16 20, 2 + 1 3 4 5 6 6050.1, क्या? ठीक है, वन मोर क्वेश्चन। ऑलमोस्ट द सेम परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू, ठीक है। आई थिंक पावर एंड फर्टिलाइजर, या दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल, परसेंटेज चेंज ही बोल रहे हैं, तो आई थिंक दिस इज राइट। चलो वी आर डन विद 1D asset, आई एम वेरी हैप्पी, 5.5 minutes, नॉट बैड। 10 kg ऑफ दिस थिंग एंड मिक्स टुगेदर, ठीक है। 23 एंड 28 को मिक्स कर दिया, 2 पार्ट इसका 3 पार्ट इसका, बिकॉज 10:15 है, तो ये गैप है 5 का, तो इधर 2 का गैप आना चाहिए, तो 30 सॉरी 26 होना चाहिए, 26, ठीक है। जॉन एंड करण स्टार्टेड अ बिजनेस 2025, 4 मंथ्स के बाद किया उसने, तो 1000 से पकड़ के चल लो, तो जॉन करण एंड ललित, सो 20 इंटू 4, 4 मंथ के लिए जॉन का 20 था, 24,080, करण का ये था 25,400, ललित का 0 था, कुछ भी नहीं था। उसके बाद ललित ज्वाइंट एंड 1 ईयर होगा मेरे हिसाब से, इन्वेस्टमेंट ऑफ 40,000, सो आई एम अज्यूमिंग एनुअल होगा ये। 40 इंटू 80 इज 320, एंड 25 इंटू 8 इज 200, और इसका डबल इज 160, so 240 is to 300 is to 320. Difference between the shares of John and Karan in this profit. John and Karan के बीच में कितना डिफरेंस है? 60 का डिफरेंस है in the profit of 60 to 70 to 860, 50 होगा ना इंटू 5, या 50 to 50 होगा, तो इंटू 50, 3000 का डिफरेंस आना चाहिए। अक्षय सोल्ड 2 horses at the same price, same selling price, 20% profit 20% loss, तो 20 square 400, 4% लॉस होना चाहिए।
आई एम अज्यूमिंग यू कैन डू दिस थिंग, मतलब कर सकते हो, उसको कोई इशू नहीं है। 100 पकड़ लो, 1 हॉर्स से 20% प्रॉफिट, ये सेलिंग प्राइस 100 था, एक में 20% लॉस पे जाके बेचा उसने, तो 20% लॉस मतलब 125 में उसने बेसिकली खरीदा था, 20% लॉस मतलब इसमें बेचा। एक कॉस्ट प्राइस था, और एक कॉस्ट प्राइस था 80, सॉरी 20% ना, इट्स नॉट अ गुड नंबर, 120 लेके चलते चलो। सेलिंग प्राइस 120 पकड़ लो, एक 150 में खरीदा था, एक 100 में खरीदा था, तो 250 में खरीदा, 240 में बेचा, बेसिकली 10 on 250, 4% लॉस, दैट्स हाउ इट गोस। ठीक है, 32,500 आफ्टर 3 years एंड 45 आफ्टर 8 years, तो 5 साल के अंदर 12,500 का ग्रोथ हुआ है, तो 2,500 का पर ईयर ग्रोथ हुआ है, सो 7,500 का 3 साल में ग्रोथ हुआ होगा, तो 25,000 शुड हैव बीन द अमाउंट, और यू कैन जस्ट से 2,500 प्लस मतलब 5,000 ऐड करेंगे 3,700 हो जाएगा। ठीक, मेक सेंस। 15 एप्पल्स फॉर 77 एंड 12 एप्पल्स फॉर 77, ठीक है, एक तो मतलब कर सकते हैं इसको नॉर्मली, वो भी ले लो, नहीं तो मेक इट 60 एप्पल्स ना, तो 60 एप्पल्स उसने लिए होंगे 280 प्लस 28 308, एंड 60 एप्पल्स उसने बेचे होंगे 77 इंटू 5 350 एंड 35 385 में बेचे, सो बेसिकली 77 का प्रॉफिट ऑन अ कॉस्ट ऑफ 308, आई थिंक 11 से डिविजिबल है, 11 7 जार 11 2 जार 28 7 4 25%, आई एम होपिंग दैट्स राइट, या सीम्स टू बी राइट। ठीक है, ओके, व्हेन विल द वर्क बी कंप्लीट, 10 15 एंड 20, सो 60 यूनिट्स पकड़ लो, A does 6 units per day, B does 4 units per day, C does 3 units per day, मतलब पीक क्यू आर वटेवर, तो फिर 60 बनाना है ना मेरे को, आई थिंक आई डू इट नॉर्मली यार, एक एक करके कर लेंगे, इजीली हो जाएगा। 6 4 3, 13 units in 3 days, 26 units in 6 days, 39 units in 9 days, 52 units in 12 days, 12 दिन हो गए, 52 हो गए, फिर 58 units on the 13th day and the 14th day पे काम खत्म हो जाएगा 13 दिन के बाद। ऑलराइट, आई डोंट नो, दिस इज टू मच ऑफ information. Maximum number of students in class 10 of all board types of the following cities ना, class 10 का क्या है, 2019, all board types, तो ये सारे ऐड करने हैं बेसिकली। ठीक है, ऐड कर लेते हैं। रांची का कितना है, 224 103, आई थिंक थोड़ा देख के भी पता चल जाएगा, बट ठीक है कर लेते हैं यार, इट्स ओके। 224 327 369 409 609, रांची 609, चंडीगढ़ इज 188 320 332 394 494 594 573 I believe, I hope I am right, 9 13 23 2 10 14 20 27 2 3 4 5, या परफेक्ट। ठीक है चलो, आज कैलकुलेशन तो ठीक बैठ रहा है मेरा। 14 and 7 is 70 is 31 310 390 490 510 and 13 523 and 15 538। नागपुर 15 16 31 310 323 392 434 534, बहुत क्लोज है, बट रांची इज विनिंग। जयपुर में क्या चल रहा है, जयपुर भी बहुत कम लग रहा है मेरे को देख, 11 9 20 27 एंड 40, ये तो 400 में ही चल रहा है, 414 और 7 421, तो रांची मैक्सिमम इज रांची, आई होप आई एम राइट राइट। नहीं मैंने कुछ तो गड़बड़ कर दिया ना, ये वाला ऐड करना था, मैंने ये वाला ऐड कर दिया, ओके वेरी इंटरेस्टिंग, हाउ इंटरेस्टिंग। ठीक है, जयपुर देख लेते हैं। 57 57 114 182 and 77 23 is 59 right, 259, ओके आई डू दिस समटाइम्स। और क्या है, रांची एक बार देख लेते हैं, रांची तो बड़ा नंबर लग रहा है, बहुत बड़ा नंबर है यार, 95 85 इज क्रेजी, 180 एंड 235 एंड 298, अच्छा इतना भी क्रेजी भी नहीं है, बट इतना कैसे डिप आ रहा है, am I doing something wrong, 180 and 55 is 235 298, yeah this is fine, ठीक है देखते चलो, चंडीगढ़ भी देख लेते हैं। 86 and 74 is easier to count, 160 हो जाएगा, 160 and 90 is 250 and 38 is 288। वाइजैक में क्या चल रहा है, 87 and
ठीक है। 87 एंड 42 13 करेंगे 129, 129 एंड 82 करेंगे तो 211 एंड 211 एंड 65 इज 276। नागपुर छोटा नंबर लग रहा है, बहुत बड़ा नंबर नहीं लग रहा। 72 38 110 110 92 लाख 275 लग रहा है, तो 298 रांची स्टिल विंस। The only loser is me because I wasted a lot of time. Which has the highest number of schools? ये number of schools है, ठीक है। तो औरंगाबाद में कितने हैं? औरंगाबाद is here 124 136 is 260 360 415 500 600 औरंगाबाद is 600 but Ranchi is still winning. So औरंगाबाद is 600, Ranchi is 609. रायपुर में क्या चल रहा है? 200 234 287 291 491 591 and 645. Yeah, Raipur is winning. Raipur is 645. भोपाल में क्या चल रहा है? 287 143 is 430 and 179 is 509 609 and 57 is 666. भोपाल is 666. चंडीगढ़ तो कम ही था ना, चंडीगढ़ था ही नहीं, तो भोपाल विंस बेसिकली हाईएस्ट स्कूल्स, ठीक है। Which of the following is true? Total number of IGCSE board schools in 10 cities is more than the total number of state board schools in 10 cities. ठीक है। IGCSE वर्सेस स्टेट बोर्ड ज्यादा है, 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 तो ये तो बिल्कुल नहीं है, स्टेट बोर्ड ज्यादा है। एवरेज नंबर ऑफ ये तो पक्का नहीं है। नंबर ऑफ स्कूल्स इन आगरा इज मोर देन द नंबर ऑफ स्कूल्स इन जयपुर। आगरा वर्सेस जयपुर, आगरा में यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे 38 ज्यादा है, यहाँ पे 30 कम है, तो 8 ज्यादा है बट ये 30 कम है, नहीं आगरा में ज्यादा नहीं है। सो 3 इज फॉल्स। Total number of students in state board is more than that of ICSE board. State is more than ICSE in 10th standard ना, ज्यादा है स्टेट बोर्ड, 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 ज्यादा है स्टेट बोर्ड इज द क्लियर विनर एवरीवेयर, तो ये राइट है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 10 इन स्टेट बोर्ड इज मोर देन दैट इन ICSE, ठीक है। तो सेकंड में कैलकुलेट ही नहीं किया। In all the schools across boards in Ahmedabad approximately, ठीक है, this is much easier I think। 157 and 63 is 220, 220 and 91 is 311, 312 512 512 by 512 by 4। oh 512 schools are there। तो इसको भी याद कर देते, फिर 10th स्टैंडर्ड है ना सिर्फ, लेकिन ये थोड़ा गड़बड़ है पर ठीक है, चलो देखते। 69 79 89 94 94 and 105 199 199 000। इंटरेस्टिंग। तो इसको मैं 500 कर देता हूँ, ये दो निकल जाते हैं। यू विल गेट 5 3s आर 15 49 5 9s आर 45 45 8s आर 40 398 कुछ आएगा। मे बी दिस इज द आंसर देन। 24 मिनट्स लेफ्ट, ओके। यहाँ पे बहुत टाइम पास किया मैंने। What percent is the average number of students in CBSE board schools in Nagpur in class 10? Nagpur CBSE class 10 72,000 by 154 is more or less than the number of ICSE Jaipur class 10. ICSE Jaipur class 10 57,095. एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सीबीएसई बोर्ड स्कूल्स। थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मेरे को ये क्वेश्चन के अंदर, बट मतलब ठीक है, चलो लेट्स सी। मतलब द फर्स्ट वन टॉक्स अबाउट स्कूल्स अक्रॉस ऑल द स्टैंडर्ड्स एंड ये वाला सिर्फ क्लास 10 की बात कर रहे हैं, तो आई एम अज्यूमिंग कि हर एक स्कूल में क्लास 10 होगा, माय बैड। ठीक है, देखते इसको ट्राई करते हैं। 72 by 154 एंड 57 by 95, दिस इज डेफिनेटली द ग्रेटर वन, क्योंकि अगर मैं इसमें आधा भी ऐड कर दूं तो ये बहुत आगे चला जाएगा 72,000 से। So I am basically doing 57,000 by 95 minus 72,000 by 154 upon 72,000 by 154। नहीं, कंपेयर टू जयपुर ना, तो ये नीचे आना चाहिए 57,000 by 95। So let me just do this once। एक बार मैं कर लेता हूँ इसको, हो जाएगा ये। 1 minus 72,000 by 154 into 795 by 57,000। तो ये तो हट जाएंगे, ये सारे हट जाएंगे।
19 3 जार 19 5 जार 95 324 जार ये क्या है 54 नहीं 57 है 114 154 120 बाय 154 4 बाय 5 20% से थोड़ा सा कम आई विल गो विद दिस हाउ मेनी क्वेश्चंस आर लेफ्ट इन दिस एक ही है ना चलो कर लेते हैं इसको टोटल नंबर ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट्स इन वाइजैग मोर और लेस देन दैट इन चंडीगढ़ वाइजैग किया था हम लोगों ने फिर से कर लेते हैं 120 180 260 269 and 7 is 276 276 is Vizag Chandigarh is 86 and 74 कितना 160 बोला था ना 160 and 90 250 288 तो Vizag is 12 less than Chandigarh so 288 into 100 12 to the 24 4 the 48 24 ना 4 6 are 425 by 6 आएगा 4.16% हो जाएगा या ठीक है 23 registrations for 21 vacancies 23 में से 7 are from a reserved category 5 are to be selected number of ways in which different candidates will be selected 23 में से मेरे को 21 चाहिए 23 में से 7 reserved है and general I am assuming is 16 5 are for reserved तो 16 are for everyone else ना ठीक है तो एक काम करते हैं पहले 7C5 लेते हैं बिकॉज 7 में से 5 तो मेरे को लेने ही है एंड देन व्हाट विल हैपन इज जो बचे हुए दो है ना वो भी यहाँ पे चले जाएंगे एंड देन आई विल हैव 18C16 थोड़ा मेरे को गड़बड़ लग रहा है बिकॉज देयर विल बी सम ओवरलैप एज वेल राइट सो ABCDEFG अगर है मेरे पास उसमें से ABCDE अगर यहाँ पे आ गए और अगर दो वहां से आ गए तो भी इशू हो जाएगा ओके तो आई विल डू वन थिंग ऐसे नहीं करना चाहिए इसको ऐसे करना चाहिए 5 and 16 फ्रॉम व्हाटएवर तो 7 और 16 में से या तो 516 यहाँ पे आएगा या फिर 615 यहाँ से आएगा या फिर 714 यहाँ से आएगा ऐसे कर सकते हैं हाँ दिस आई थिंक इज अ बेटर वे टू डू दिस या तो 1 will be 7C5 7 6 2 21 this one is 7 into 16 112 I think and this is 16 into 15 by 2 15 is 120 ऐसे कुछ तो आएगा 232 253 I think this is the one let's see seems to be right 12 food lovers can eat 12 dishes in 12 hours how many dishes would be eaten by 24 food lovers in 24 hours double हो गया तो 12 food lovers can eat 24 dishes in 24 hours so 24 food lovers would eat 48 dishes in 24 hours I'm assuming this is a very वो cognitive test वाले क्वेश्चन होते हैं वैसे टाइप के 24 food lovers can eat 24 dishes in 12 hours तो 24 घंटे में डबल करेंगे 48 करेंगे ओके ये क्या है 8 9 10 11 12 सो बी शुड डेफिनेटली बी 0 एंड अगर 8 से डिविजिबल है तो 510 नहीं चलेगा 520 इज डिविजिबल बाय 8 530 नहीं चलेगा 540 इज डिविजिबल बाय 8 क्या नहीं 520 अगर है तो 40 नहीं होना चाहिए ना 560 होना चाहिए तो ये दोनों में से कुछ तो एक होगा अब 9 का भी देख लेते हैं 1463 तो 63 चला जाएगा 45 चला जाएगा 12 बचा तो 3 बचा मेरे पास 3 बचा ना तो 9 से डिविजिबल तो नहीं आ रहा मेरे को सॉरी आई एम सो सॉरी 1 2 3 4 5 6 मतलब 21 यहाँ पे हो गया है व्हाई डिड आई से 3 6 में को चाहिए था सॉरी 6 और 15 नीडेड टू बी दिस अब 10 से डिविजिबल है तो बी तो 0 होना ही चाहिए आई डोंट नो यार 11 का क्या सीन है 6 प्लस 1 7 8 9 9 प्लस 8 एंड 4 5 6 7 7 5 12 12 प्लस बी 12 इटसेल्फ तो ए तो 3 हो सकता है
या तो 14 होगा, विच इज नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता इसका कुछ भी, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल एट ऑल, आई डोंट थिंक दिस इज पॉसिबल। ओके, ये क्या है, फोर नंबर्स such that the ratio of the first to the second, well that of the third to the is A, third to the fourth is B, n1 by n2 is A, n3 by n4 is B. If the sum of the third and the fourth number is 14, while the sum of the first and the second number is 9, so you can say 4 by 5, and B is I don't know, 6 and 8. ओके, 6 एंड 8 ले लेते हैं, सो दैट 1:2 मिलता है, तो 1/2 मिलना चाहिए, देखते हैं क्या हो रहा है ये, 9 इंटू ए, ओ, ओके, तो बेटर है कि आई विल गो फॉर सम बेटर वैल्यूज ना, आई विल गो फॉर समथिंग दैट इज 1 इन द डिनोमिनेटर। हाँ, n4 को 1 करूंगा तो मेरा लाइफ इजी हो जाएगा, 13:1 कर देते हैं, और यहाँ पे इसको 1 कर देते हैं, हाउ डज इट मैटर, ये 1 करते हैं तो ये बनेगा 8, ठीक है, 8:1, सो ए का वैल्यू 8 बनता है, बी का वैल्यू 13 बनता है, अभी देखते हैं, एंड द आंसर शुड बी 8, ठीक है, 1:4 का वैल्यू 8 ठीक है, 9a इंटू 1 प्लस बी, 9 8 72, 72 इंटू 14, 72 इंटू 14, 72 बाई 9 शुड बी 8, आई थिंक दिस इज राइट, बाकी तो गड़बड़ लग रहा है, 1 प्लस ए इज 9, 14 बहुत ऑकवर्ड लग रहा है, 14 एंड 1 प्लस बी आर स्टिल फाइन, 1 प्लस ए बाई 9, 1 आएगा, ये भी गलत है, 9a इंटू 1 प्लस बी बाई 14, बी इंटू 1 प्लस, फालतू का बी यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया ना, वो गलत है, चलो ठीक है, आई थिंक दिस इज राइट। Okay, we all already fallen behind. We should not have gone for the DI set. 2070 and 2380.5. Okay, 70, 170, 270, 370. I'll get 310.5, right? 207 into 1.5 is 310.5. तो कितना 15% है? या 15% is the rate of interest ना, तो 2070 is coming from two sources, right? नहीं, इसको ही डिवाइड करेंगे 1.15 से, that should be the answer, yeah. So 23 से हाँ 23 से डिविजिबल है, yes. 2070 into 100 by 115, 23 90s are, 23 5s are, 520s are 1800, yes, that should be the answer. I become slightly slower. ये क्या हो गया यहाँ पे, 3 commodities XYZ क्लोजिंग स्टॉक मिल रहा है, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर का मिल रहा है, the value of commodity X is this one, total value is 1260, value of Z is 10 more than Z in Nashik. nahi, I don't think I'll get go for this, it's too much of effort and I have only 14-15 minutes left, nahi karenge ye wala. Ratio of the number of boys to the number of girls in a class, 1/3 of girls and 60% of boys remain absent, half of the class is present, 1/3 of the girls remain absent, so let's say there are 3G गर्ल्स, चलो ठीक है, 15G गर्ल्स एंड 15B बॉयज है मेरे पास, ठीक है, हाँ तो 20:G का रेशियो चाहिए, 1/3 ऑफ द गर्ल्स आर एबसेंट, तो 10G आर प्रेजेंट एंड 60% ऑफ द बॉयज आर एबसेंट, 9B आर एबसेंट, तो प्रेजेंट इज 6B, 10B प्लस 6B इज हाफ द क्लास, 7.5B प्लस 7.5G, तो इससे मेरे को मिल जाएगा 1.5B एंड 2.5G, तो आई गेट B:G, तो 1 इज इनफ, 2/5 ऑफ द बॉयज एंड 15 गर्ल्स, इन नंबर से तो नहीं पता चलेगा मेरे को लग रहा है, 51 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, 15 आर प्रेजेंट, तो मेरे को एब्सेंट का नंबर ही नहीं पता ना, ठीक है, एनीवे आई थिंक दिस इज राइट. Suresh and Surekha is a couple and Samir and Seema are their children. Difference between the ages of their children. 2 years hence, the ratio of the ages of Suresh and Surekha will be 8:7. 4 years hence, Samir and Seema will be 3:2. तो क्या पता चला उससे, मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा. 3 years ago, ratio of the age of Suresh and Surekha was 7:6. When Samir was born, the age of his mother was numerically twice the age of Samir today. ये भी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा, दोनों को कंबाइन कर दे तो क्या होगा,
7:6 था, अभी 8:7 हो गया है, बट दिस इज 5 years का गैप. सो मतलब 2 years hence it will be 40:35. पता नहीं, आई स्टिल कांट एबल टू प्लेस दिस. आई थिंक आई नॉट बी एबल टू आंसर, मतलब आई नॉट बी एबल टू आंसर, नहीं, पीपल विल नॉट बी एबल टू आंसर दिस. लेकिन तो ट्रिकी लग रहा है ये. कितने क्वेश्चंस हो गए? आई रीच क्रॉस 32 हो गया ना. ठीक है, वी विल बी स्लाइटली फास्टर नाउ. देखते हैं. a रेज टू m, b रेज टू n, c रेज टू p इज 45,000. 45,000 क्या होता है? दिस इज 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब 5 रेज टू 4 इंटू 3 स्क्वायर, ऐसे कुछ होगा. ठीक है. एंड 2160 क्या होगा? दिस इज 6 क्यूब, राइट? सो 2 रेज टू 3, 2 रेज टू 3, 3 रेज टू 3, 2 रेज टू 4, 3 रेज टू 3, 5 रेज टू 1, ऐसे कुछ होगा. तो a का जो पावर था 2 क्यूब था, लेट्स से, वो अभी बन गया b का पावर. तो a could be 2 and b could be 3. बट b का जो पावर था वो इधर है ही नहीं, विच मेक सेंस. a का पावर अगर 2 है तो, अगर a 2 है तो सॉरी b 3 बन जाता है. अगर a 5 है लेट्स से, तो यहाँ पे 5 रेज टू 1 तो मिलेगा ही नहीं मेरे को, तो दिस इज नॉट ट्रू. अगर a 3 है लेट्स से, a अगर 3 है, 3 रेज टू 2 भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो a हैज टू बी 2. एंड आई एम यूजिंग बोथ, मतलब मेरे को बाकी तो पता ही नहीं चलेगा शायद मेरे को. ठीक है, a हैज टू बी 2, b देन बिकम्स 3. अगर b 3 है तो 3 3 9 तो आ जाएगा ना इससे फिर. b इंटू m इक्वल टू 9. आई थिंक यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स. ऑप्शन 5, ओ सॉरी, मैंने पहले वाले में गलत कर दिया क्या मार्क? लेट मी जस्ट चेक इट वंस. दैट वाज कैन नॉट बी आंसर्ड, सो मे बी 4 इज द आंसर. ठीक है, चलो नेक्स्ट. यार आई डोंट लाइक दिस. इफ द कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज बाय 10%, द प्रॉफिट रिड्यूसेस बाय 33.33. मतलब आई एम अज्यूमिंग सेलिंग प्राइस रिमेन्स द सेम. So S minus P by P into 2 by 3 is equal to S minus 1.1 P upon 1.1 P. ऐसे कुछ तो आएगा. P gets cancelled out. Okay, something happened. Sorry. P gets cancelled out. 2.2S minus 2.2P equals 3S minus 3.3P. 1.1P is equal to 0.8S. So P by S का वैल्यू अपने को मिल जाएगा. तो इससे तो कैलकुलेट हो जाना चाहिए. आई थिंक इधर इज फाइन. मेरे को लग रहा है दोनों भी ठीक लग रहे हैं, तो सी एल गो फॉर. बिकॉज दोनों में कॉस्ट और प्राइस सेलिंग प्राइस के बीच का ही दिया है ना. तो लेट्स सी हाउ मेनी 4 digit numbers can be formed. Lot of them. The first digit of the number cannot be 0, which is obvious. Repetition of the digits is not allowed. I'll go with only 2 then, क्योंकि फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ऑब्वियस ही है ना. ओके, रूट्स ऑफ दिस वन, x square plus 13x minus 48. ओके, सो a के अंदर द रूट्स विल बी x plus 16 x minus 3, so minus 16 and 3. b का वैल्यू विल बी minus 24 चाहिए, तो 12 and 2 आएगा. इट्स नॉट 6 and 4, इट्स 12 and 2. तो minus 12 and plus 2, minus 12 plus 2, 12 and minus 2, 12 by 3 that is 4 and minus 2 by 3, ये आएगा. तो अगर ये -16 और -4 तो ये बड़ा है, ये माइनस और ये तो ये बड़ा है, तो इधर इज फाइन, कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड. सो 5. ये कुछ तो गड़बड़ है क्या? a इज ग्रेटर देन b तो 1, a इज ग्रेटर देन b तो 3, लेस देन 2 4, कुछ तो टाइपो है. बट इन दिस केस द आंसर इज 5, तो नो हार्म. p and q have some amounts. ठीक है, if p gives 10 to q, he would have half the amount as well as with q. okay, तो
3x होना चाहिए बेसिकली। तो ये तो 100 तो नहीं होता, 135 पकड़ लो। 135 अगर है तो P के पास बचेगा 45, Q के पास बचेगा 90, अगर P 10 देता है तो। सो इनिशियली कितना होना चाहिए था? 55 एंड 80 होना चाहिए था। If Q gives 20 to P, 60 and 65 and 75 and 60, तो ये भी नहीं राइट है, तो 135 राइट नहीं है, 155 नहीं है, 180 पकड़ लो। 180 में 10 देने के बाद 60 और 120 बनेगा, तो 70 और 110 होना चाहिए था। 20 अगर देगा तो इक्वल हो जाएगा, करेक्ट? या तो दिस इज द आंसर। 230 भी आंसर नहीं हो सकता, मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। सम ऑफ द मल्टीपल्स ऑफ 5 बिटवीन 200 एंड 400, सो आई एम अज्यूमिंग बाकी के ऐड नहीं करने हैं। 395, तो दिस इज 5 into 41, दिस इज 5 into 77, 79. So basically 5 into 41 till 79. So 41 plus 79 by 2 multiply by the number of terms. तो 39 आएगा ये. So you will get 120, 60 into 39 into 5, 300 into 39, 11,700 should be the answer, I think. कितना बचा? 7 minutes to go. Let's see. The radius is increased by 50%, height is decreased by 50%. Change in its volume. ये थोड़ा easy होगा. Cylinder है ना, pi r square h. So radius is increased by 50%. So radius is 3 by 2. So 9 by 4 हो गया. Height is decreased by 50, pi r square h. So ये बन गया 9 by 8. So instead of 1, it became 9 by 8. So it is increased by 1 by 8, increased by 12.5%. Would be the answer. अरे फिर से डेटा सफिशिएंसी आ गया. I don't like this questions. ठीक है, एक दूसरा कुछ कर लेते हैं यार. I'm bored of this. Store 1, product 1, 12% discount, and store 2 sold product 2 after 2 success of 15 and 20. Store 1 क्या है इसके अंदर से? This is store 1. ओके, रेड वाले पे डिस्काउंट दिया होगा एंड कॉस्ट भी दिया हुआ है. ओह इंटरेस्टिंग. प्रोडक्ट 1 के पूछा है ना, सिर्फ प्रोडक्ट 1. दिस आई थिंक इज 75 तो उसने 12% डिस्काउंट दे दिया है. क्या ऑकवर्ड नंबर है यार. 75 में 12% तो 9 रुपीज ऑफ दिया ना, तो उसने दिया 66 में सेल किया. कॉस्ट प्राइस वॉज 50. एंड स्टोर 2 ने क्या किया? स्टोर 2 ने 100 के ऊपर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, 15% और 20% का. 20% पकड़ लो पहले, 80 का दिया, 80 पे 15 में 12 का दिया, 78 पे बेचा, एट वॉज 50. तो क्या डिफरेंस है? प्रॉफिट अर्न. नहीं समझ आया कोई. हाउ कम दिस सीम्स टू बी ऑफ. प्रॉफिट अर्नड फ्रॉम सेलिंग, कॉस्ट प्राइस इज सेम ना, तो दोनों में 50 रुपीज का तो कॉस्ट प्राइस था, तो इसको मिला 16 रुपए का प्रॉफिट, इसको मिला 28 रुपए का प्रॉफिट, तो 12 का गैप आना चाहिए ना. अनलेस आई हैव मेड सम मिस्टेक समवेयर. 100 पे 20% का इज 80, 80 पे 15% इज 80 पे 50% इज 12, 68 होना चाहिए. ओ सॉरी, 2 रुपीज. डिस्काउंट परसेंटेज ऑफर्ड ऑन प्रोडक्ट 6 इफ बोथ दी स्टोर्स अर्न 0 प्रॉफिट. ठीक है, स्टोर 6 के अंदर व्हाट इज दिस नंबर, 90. 90 पे भाई ने डिस्काउंट दिया 15 रुपए का. 15 on 90, सॉरी 65 है ना ये, दिस इज 65, तो 25 on 90. एंड दूसरे ने डिस्काउंट दिया 95 एंड 65, तो 30 का डिस्काउंट दिया. 5:6 होना चाहिए फिर तो. प्रोडक्ट 4 has been sold in store 1 and store 2 after a discount of 50 and 40, 60. ठीक है, स्टोर प्रोडक्ट 4 यहाँ पे है, 75 है इसका ये कॉस्ट प्राइस. स्टोर 1, स्टोर 1 में 50% का डिस्काउंट, मतलब 60 में बेचा, 60 एंड 125 का 60% कितना होता है? 75. 60 एंड 50 में बेचा ना फिर तो. 60 एंड 50,
15 and 25. So 3:5. Selling price of product 1 in store 1 after 33 1/3 discount. अच्छा ओके, ओह नाइस, ठीक है, सबका निकालना पड़ेगा ना, जल्दी निकाले तो हो जाएगा। आई थिंक ए में सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट 1 इन स्टोर 1 तो 75 तो 50। बी का वैल्यू क्या है? सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट 3 आफ्टर 13, प्रोडक्ट 3 स्टोर 1 तो 70 पे 30% डिस्काउंट 49। सी प्रोडक्ट 4 स्टोर 2 125 आफ्टर 58% डिस्काउंट। ओके, डी 44 4/9% डिस्काउंट, प्रोडक्ट 2 इन स्टोर 2 90 44 इंटू 9 कितना होता है? 396 होता है, 400/9 ना, तो 500/9 आएगा तो 5000 हो जाएगा ये, मतलब 50 आएगा। आई थिंक ए एंड डी शुड बी इक्वल। परसेंटेज था ना तो 2 0 निकल जाएगा। स्टोर 1 ऑफर 28 4/7% डिस्काउंट फॉर प्रोडक्ट 3। ओके, और कुछ अच्छा दिख रहा है इंटरेस्टिंग? लेट्स सी, ये छोड़ दो इसको। टाइम टेकन बाय ए टू क्रॉस अ 550 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म in the same direction, A and B in same direction, 54 90। I will go for 1, A is greater than B। ये तो एक ऑप्शन मेरे को गड़बड़ लग रहा है सारे। वॉल्यूम्स ऑफ दिस थिंग एंड दिस थिंग, सिलेंडर ये है, कोन ये है, डबल हो गया तो नहीं, ये बड़ा होगा। आई एम जस्ट रैंडमली गेसिंग बाय द वे। 60 and 40 तो क्यू फास्ट कर रहा है ना। I will go with B then। Smaller part in 2 years, a bigger part in 3 years। Smaller part I think in 2 years, bigger part in 3 years maybe, I don't know। ठीक है, I'll go with this। चलो, probability I should have gone for this यार, picture okay, red ball 3/13 and मेरे हिसाब से तो इक्वल आना चाहिए फिर तो। ठीक है, अब ये काम करते हैं, सब गेस वर्क मार कर लेते जल्दी जल्दी। लेट्स सी व्हाट ऑल वी हैव, इसको ओपन करते हैं दिस वन, लेट्स गो फॉर ऑल सीज, देखते हैं हाउ मच आई एम एबल टू डू। शायद सारे होंगे नहीं मेरे से गेस वर्क, बट ठीक है, फेयर इनफ, इट्स ओके, आई हैव डन व्हाट आई कुड डू। लास्ट में आई गॉट स्टक थोड़ा सा, आई शुड नॉट हैव गॉटन स्टक ऑन दैट रैंडम डीआई सेट। एक वो डीआई सेट मेरे को नहीं करना चाहिए था, ये तो क्या था ना मैंने, सॉरी ओके, आई डोंट नो, आई डिड सम फनी स्टफ। 5 था शायद इसका आंसर। ओके, आई अनमार्क्ड वन आंसर व्हिच आई शुड नॉट हैव। ठीक है, फाइन, देखते एक बार, लेट्स सी व्हाट दिस स्कोर कार्ड लुक्स लाइक। मेरे हिसाब से इफ यू आई लुक एट इट, अभी आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली वुड हैव हैपेंड, बट आई जस्ट एस्टिमेट, आई जनरली एस्टिमेट व्हाट वुड हैव हैपेंड। तो एलआर के अंदर कुछ 51 जेन्युइन अटेम्प्ट्स थे, वीआर के अंदर वी हैड 22 जेन्युइन अटेम्प्ट्स, वीए के अंदर वी अटेम्प्टेड ऑल 50 एंड क्यूए मेरे हिसाब से आई थिंक वी डिड सम 40 क्वेश्चंस, 38 से 40 के होंगे जितना मेरे को याद आ रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे हिसाब से 45 46 तो शुड बी राइट, इसके अंदर 17 18 तो एटलीस्ट आई थिंक आई शुड हैव। वीए सीम टू बी स्लाइटली ऑन द इजियर साइड, आई थिंक इट शुड बी 38 40 के आसपास, एंड ये कॉन्ट के अंदर भी मोस्टली भी गॉट इट राइट, तो 35 तो राइट होने चाहिए मेरे को ऐसे लग रहा है। ठीक है, सो द टोटल शुड बी समवेयर अराउंड 80 120 138 कुछ आना चाहिए, बिकॉज आई डिडंट अटेम्प्ट अ लॉट ऑफ दीज। वो कुछ लास्ट में कुछ मैंने 8-10 तुक्के मारे, उसमें से 1-2 राइट आएंगे मे बी, बट एनीथिंग अबाउ 130 आई थिंक आई शुड बी हैप्पी विद दैट स्कोर। ठीक है, तो स्कोर कार्ड देख लेते हैं, आई विल रिवील दी स्कोर कार्ड, मेरे को भी नहीं पता कितना है, 130 या, बट अटेम्प्ट इज 175, तो 5 मार्क इधर उधर से आ जाते। दी ओनली प्रॉब्लम वाज क्वांट में मिस 10 क्वेश्चंस मेरे मिस हो गए, वो लास्ट के कुछ तुक्के मेरे गलत हो गए होंगे। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग वाज स्पॉट ऑन, लॉजिकल रीजनिंग 44 और स्पॉट ऑन, एंड वीए के अंदर थोड़ा ओवर एस्टिमेशन हो गया मेरे से। ठीक है, बट 130 आई थिंक इज अ स्ट्रॉन्ग स्कोर। दो चीजें आई कैन डेफिनेटली से वेंट रॉन्ग इन माय केस। वन वाज दैट एलआर वाले सेट में आई गॉट स्टक बैडली, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, दैट कटप्पा बाहुबली वाला, वो मेरे को नहीं करना चाहिए था। एंड सेकंड थिंग, आई गॉट स्टक इन दैट सीबीएसई वाला स्कूल वाला सेट, मैं थोड़ा सा ना कैजुअल हो गया वहां पे,
So I should not have gotten casual. 40 minutes to go for quant. I should have been much more aggressive there, but वो नहीं हुआ मेरे से. Those were the two mistakes I think. Verbal ability was very good. I don't think there is any complaint in terms of verbal ability. या abstract reasoning में भी ज़्यादा complaints नहीं है. थोड़ा slow हो गया abstract reasoning में भी, but no complaints whatsoever. But quant I think थोड़ा over confidence मेरे में आ गया था quant के context में. I should not have been this over confident. मतलब एक तो accuracy भी नीचे गिर गया, and attempts wise also I got stuck in that set. अगर वो छोड़ के मैं last के DS वाले questions करता would have been better. So a lesson for all of you. बहुत बार ऐसे होता है दैट यू एंड अप डूइंग समथिंग विच यू डोंट इंटेंड टू. तो वो चीज़ होती है, तो वो एक चीज़ है. बट आई जस्ट शो यू वेयर आई मिस्ड आउट. ये तो 109 इज फाइन. आई डोंट थिंक दैट्स अ प्रॉब्लम एट ऑल. सेकेंड क्वेश्चन वॉज ऑल्सो सॉरी आई एम सो सॉरी. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन वॉज 142. ओके है. 51 थोड़ा पेस पिकअप कर लिया. 28 विच वॉज वेरी गुड. दिस वन वॉज 142 थोड़ा टाइम लगा यहाँ पे. दिस वन वॉज 123 बट आई थिंक आई एक्सप्लेन्ड इट ट्वाइस. तो यहाँ पे थोड़ा टाइम गया, बट इट्स ओके, इट्स फाइन है. मतलब ये तो ठीक था. आई कुड सी देयर आर टू आंसर्स हियर. ये तो तुक्का मारा हुआ है, तो दिस इज नॉट सपोज टू बी राइट एज वेल. ये सब गलत है. सब तुक्के गलत हो गए. ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, सारे तुक्के गलत हो गए. ठीक है. यहाँ पे रिलायंस सुपर मार्केट हैज अनाउंस्ड, ये वाला राइट हो गया. आई वॉज हैप्पी दैट दिस वॉज द आंसर. मेरे को थोड़ा डर लग रहा था कि ये भी आंसर हो सकता है, बट इट वॉज नॉट द केस. 57 सेकेंड्स. आई टुक स्लाइटली लॉन्गर. यहाँ पे 51 सेकेंड्स इज स्टिल फाइन. 16 सेकेंड्स इज रियली गुड. 1:08 इस थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा यहाँ पे. दिस वॉज अगेन 25 सेकेंड्स, रियली गुड. दिस वॉज ऑल्सो राइट. 37 सेकेंड्स, वेरी गुड. दिस वन आई थिंक आई फिगर आउट वेरी क्विकली. 15 सेकेंड्स वॉज वेरी नाइस. इसमें कुछ तो आई डिड राइट. हाँ, दिस वॉज अगेन मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट. ये वाला भी आ गया था बहुत जल्दी. 41 सेकेंड्स वॉज फाइन. दिस में 15 23 वॉज नाइस. वो थोड़ा एक डिफिकल्ट था ये वाला. दिस वन वॉज थोड़ा डिफिकल्ट. 121 आई टुक. या ये कुछ गलत हो गया. आई कुडंट अंडरस्टैंड दिस लॉजिक. 8 19 42 सो इनटू 2 कुछ चल रहा था. आई अंडरस्टूड दैट, बट शायद मेरे को मार्क करना तो मैं 174 मार्क करता. बट इट वॉज जस्ट बिकॉज इनटू 2 से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है करके. बट इफ दिस वुड हैव हैपेंड, दिस वुड हैव आल्सो बीन ट्रू, राइट? आई डिडंट सी दैट. दिस वाज इनटू 2 plus 3. This was into 2 plus 4. This was into 2 plus 1. This would have been into 2 plus 4. This would have been into 2 plus 5. Into 2 plus 6. एक कुछ तो नंबर गड़बड़ था क्या बीच में? आई थिंक सम नंबर और गड़बड़ बीच में. नेक्स्ट प्राइम नंबर इज एडेड. ओ अच्छा अच्छा. आई थॉट मल्टीप्लायर बाय 2 होगा. ठीक है. फॉर सम रीजन आई थॉट दैट 170 इंटू 2 130 के ऊपर चला जाएगा. दैट इज व्हाट आई थॉट. दैट्स व्हाई आई डिडंट मार्क 170 और 164. इसके लिए मेरे को लगा 160 के नीचे का कुछ नंबर होगा. बट एनीवे द रीजनिंग वाज इनकरेक्ट. बट शायद आंसर आ जाता. दिस वाज राइट थैंकफुली. 7 मिनट 34 सेकंड इज क्रेजी यार. उसके बाद 216. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू शुड नॉट डू. 9.5 मिनट्स, 11.5 मिनट्स, 12 मिनट्स, 12.5, 13 मिनट्स. 13 मिनट्स स्पेंड ऑन दिस. ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था. दिस वाज वेरी सैड. बट थैंकफुली बाकी के राइट हो गए. दिस वाज फाइन. ये करना चाहिए था. आई डोंट नो. हाँ, आई सेड ना ये 5 वाला मेरे को थोड़ा गड़बड़ लग रहा है करके. बट क्यों नहीं था ये? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ठीक है. 81% इन द थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग विच इज फाइन. 91% इन दिस. 80% होना चाहिए. 78 था. ओ शुड नॉट बी सैटिस्फाइड. शुड नॉट बी. वही मेरे को लगा देयर वाज नो 4. आई डिडंट रीड इट प्रॉपर्ली. मेरे को लगा 70 कट ऑफ था करके. आई डिडंट सी 80 हियर. एक जगह मिस कर दिया मैंने. ठीक है, तो फाइन. ये क्या है? ये तो तुक्के मारे होंगे. हाँ, दिस वाज अ वाइल्ड गेस यार. इसमें एक राइट हो गया. तो समटाइम्स यू विल गेट सम आंसर्स राइट इफ यू मार्क एवरीथिंग द सेम. दिस आई मेस्ड अप यार. मैंने किया था आंसर. मैंने कुछ तो गड़बड़ कर दिया इसमें. ठीक है. आई हैड मार्क्ड ई एज द आंसर फॉर दिस वन. अच्छा, बी था आंसर. आई वाज कंफ्यूज्ड बिटवीन बी एंड ई एंड आई एंडेड अप मार्किंग दिस. क्या था इसका सॉल्यूशन? ऑल वर्ड्स मे बी मीनिंगलेस 4 लेटर. ठीक है. असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द राइट मोस्ट लेटर से शुरू किया था. ओ ठीक है. तो फिर गलत ही था. मेरा पूरा रीजनिंग ही गलत था. देन वट एवर आई गॉट राइट, या तो मतलब लक से था या तो इट वेंट करेक्ट. ये गलत था. 25 नहीं था. ओके, तो 30 होगा फिर तो. 23 तो मेरे को मिल गए थे. हाँ, 23 तो हैड गॉट. ठीक है. फायर ना फायर, इसमें तो गलत हो ही सकता है. दिस इज फाइन. एज लॉन्ग एज आई एम नॉट मिसिंग आउट ऑन दिस, आई एम हैप्पी. हाँ, ये मैंने नहीं किया. टू डिफिकल्ट. दिस आई डेंट मार्क. आई वुड हैव मार्क्ड सी एज द आंसर.
गोइंग बाय कन्वेंशन शायद राइट हो जाता, ये गलत हो जाता, ये भी गलत हो जाता, बट नहीं था, टाइम नहीं था। आई डोंट थिंक आई वुड हैव बीन एबल टू डू दिस। चांस ही नहीं था ये करने का, तो बिल्कुल ही चांस नहीं था। आई वुड बी ऐसे, मतलब हैट्स ऑफ इफ समवन हैज डन more than 2 LR sets here and has done well overall. This was fine. ये गलत हो गया, क्या हो गया? हाँ, ये तो थोड़ा मेरे को वियर्ड ही लगा, ये क्वेश्चन ही तो वियर्ड लगा मेरे को। आई डोंट नो, मे बी ओनली वन देन। फोर, फोर क्या है? नीदर वन आउट, ठीक है। हाँ, आई मतलब आई वुड हैव अग्रीड टू एनी आंसर यार उसके अंदर। ये तो ब्रह्मास्त्र तो ठीक था। ठीक है, तो एलआर तो मोर और लेस आई डिड व्हाट आई कुड। एक सेट के अंदर आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम, बट द मेजर डिसअपॉइंटमेंट इज हियर यार। ये क्या है? 138 is still okay. This one was still fine. I did very well here. 36 is fine. I was very happy with this. 40 is fine. 37 is fine. 134 is fine. 14 is very good. This is 23 second. मतलब यहाँ पे तो I have done very well. 58 is still okay. This is very nice, but I again explained it. But ठीक है, it's okay यार. It's not a problem. 23 is very good. 33 is very good. So 45 के नीचे ही है मेरे यहाँ पे. 42 seconds. यहाँ पे 3 minutes 4 seconds आई स्पेंट एंड आई वाज वेरी कैजुअल हियर। तो अगर थोड़ा रिकॉर्डिंग भी जाके देख लोगे ना पीछे, आई थिंक आई वाज एक्सट्रीमली कैजुअल व्हेन आई सॉल्व दिस। बहुत ही ज्यादा कैजुअल था, मतलब ठीक है, गलती से पहले वाला मैंने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है सेकंड वाला फिर से कर लेते हैं। एक्सट्रीमली कैजुअल, दिस डजंट हेल्प एग्जाम के टाइम पे, दिस डजंट हेल्प। तो आई थिंक दिस किल्ड मी मोर देन दैट कटप्पा बाहुबली वाला सेट। तो 3 मिनट चला गया यहाँ पे, 1 minute इज स्टिल फाइन। यहाँ पे आई गॉट थोड़ा सा बेरिंग आ गया मेरा, 56 इज स्टिल ओके। 1 minute इज स्टिल फाइन, मतलब ठीक है। 2 मिनट्स यहाँ पे डाल दिया, 2 मिनट्स फालतू का। तो इधर थोड़ा मोमेंटम चला गया मेरा। 43 सेकेंड्स आई लॉस्ट मोमेंटम है। उसके पहले वाले फिर कहते हैं 23 सेकेंड, 40 सेकेंड, 25 सेकेंड, 42 सेकेंड्स, वो एक फास्ट चल रहा था। वो बीच में 3 मिनट का एक ब्लॉक आ गया ना, आई सडनली फेल बिहाइंड दी टाइमर, तो वो एक इशू हो गया। दिस आई डोंट नो व्हाई इट वेंट रॉन्ग। ये क्यों गलत हो गया? ये तो राइट होना चाहिए था। बट इसमें मेरे को एक डाउट है, ये दिस आई थिंक इज फाइन, बट माई डाउट इज अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ ABCDE को एंड बाद में मैं F और G को दोनों को वहां पे सिलेक्ट करता हूँ, लेट्स से इट विल बी द सेम एज अदर ऑप्शन जहाँ पे ABCFG को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और DE को वहाँ पे सिलेक्ट किया, तो इट्स एक्जैक्टली द सेम थिंग। दैट्स व्हाई आई डोंट थिंक दिस विल वर्क। इसके लिए मैंने ये नहीं किया। आई थिंक दिस इज मे बी रॉन्ग और मे बी आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग। आई चेक इट वंस। दिस वाज राइट। ये तो यार क्वेश्चन ही गलत लगा मेरे को। आई डोंट नो, आई थॉट दिस वाज रॉन्ग। हाँ, B = 0, 21 + A इज अ मल्टीपल ऑफ 9, सो A = 6, 560 होना चाहिए। क्या क्या मैंने कुछ तो बहुत दिमाग लगाया था, अमेजिंग दिमाग लगाया मैंने इसके अंदर। Oh, I did some very random stuff. I counted 5 twice. तो 560 मेरे को ऐड नहीं करना चाहिए था। Whoever caught this, I think you would have understood. तो मैंने 520 में 5 को भी काउंट किया while counting the addition. That should not have been done. ये सिर्फ ये करके मेरा हो जाता आंसर यार। मैंने सोचा क्वेश्चन गलत है करके। I was wrong all this time. This was a good approach that I did, but time लगा थोड़ा सा, but ठीक है। This was again fine. ये शायद बनता नहीं मेरे से, बहुत डिफिकल्ट था। 3x3 का ग्रिड बनेगा बड़ा सा। इट वॉज टू मच ऑफ एफर्ट। शायद आ जाता, ठीक है। दिस वॉज फाइन। मे बी आई वुड हैव डन दिस ओवर द कटप्पा बाहुबली सेट। वो एक चॉइस आई कुड हैव मेड। आ जाता ये वाला, शायद शायद आता। आई डोंट नो इफ समवन अटेम्प्टेड दिस इन द एक्चुअल टेस्ट, लेट मी नो इफ यू आर एबल टू गेट इट, हाउ मच टाइम डिड यू टेक। बट मेरे हिसाब से मे बी इफ आई वुड हैव स्पेंट 5 मिनट्स आई वुड हैव गॉट इट। इस पे क्या गड़बड़ हो गया? तो ठीक था, तो गड़बड़ कैसे हो गया इसमें? फर्स्ट इक्वेशन में, बट टी इज जी प्लस बी ना, टी इज जी प्लस बी। गड़बड़ है ये, ठीक है। ये कैसे गलत हो गया? तो मैंने तुक्का मारा था कुछ तो। मैंने गलती से 5 मार्क किया था। 5 वाज द आंसर। ठीक है, दिस वाज फाइन। आई थिंक आई मार्क दिस राइट, बट टाइम लगा इसमें भी। ये भी दिस वाज आल्सो थोड़ा गजलर। ये गलत हो गया। ये कैसे गलत हो गया? ओनली वन था क्या? नॉट श्योर। ओ, आई डिडंट रियलाइज दिस। आई थॉट मेरे को पी और एस का अगर रेशियो मिल जाता है,
सो मेरे को प्रॉफिट परसेंटेज तो मिल ही जाएगा, इज व्हाट आई थॉट। देखना पड़ेगा, आई हैव टू चेक दिस यार, नॉट श्योर। ठीक है, देखते, आई जस्ट चेक वंस। दिस वाज वेरी इजी, दिस वाज वेरी इजी। यहाँ पे थोड़ा मेरे को टेंशन आना शुरू हो गया था, तो ये वाला भी ठीक था, ये वाला भी फास्ट किया, ये वाला भी बहुत फास्ट किया, और दिस आई डिडंट मार्क इटसेल्फ राइट। ये शायद आ जाता, वही ना, दैट इज द पॉइंट। आई वुड हैव गॉट दिस रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बिगर कोन टू स्मॉलर कोन इज 27:1, तो उनके डायमेंशंस का रेशियो शुड बी 3:1। फाइंड द हाइट ऑफ द स्मॉलर कोन चाहिए मेरे को। हाँ, तो 1 और 2 दोनों से आ जाता है ये। आई थिंक 5 इसका आंसर होना चाहिए। दिस वॉज फाइन, बट मैंने टाइम लिया यहाँ पे, फालतू का 2 बार कैलकुलेशन किया, अगेन आई मिस्ड आउट 1 मिनट यहाँ पे फालतू का। 5:6, वाई इज दिस रॉन्ग? रेशियो ऑफ द डिस्काउंट परसेंटेज ऑफर्ड, ओ आई थिंक आई डिड, बट ठीक था ना, डिस्काउंट परसेंटेज का रेशियो निकालना था, ठीक है। आई थिंक आई डिड 25:75 एंड 30:75, ऐसे कुछ मैंने किया, पता नहीं, 1/3 2/5 ऐसे कुछ आएगा शायद, 1/3 एंड 2/5, 5/6 ही आ रहा है मेरे को, वही आ रहा है, आई डोंट नो, और मे बी आई एम रिमेम्बरिंग द रॉन्ग नंबर्स। ठीक है फाइन, मतलब समवन वांट्स टू डू इट, एक बार करके देख लो। अच्छा, आई वुड गो हियर, आई गो लाइक दिस राइट, ये एरो और ये एक हो रहा है ना, ठीक है, एक सेकंड, बेटर राइट। 41 गलत था, 43 गलत हो गया, 43 कैसे गलत हो गया यार, मोर देन होना चाहिए है क्या? 28 4/7, आई हैव नो आइडिया। ये भी नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया, टाइम ही नहीं था यहाँ पे, दिस आई गेस्ड समथिंग, आई गेस्ड, ये 3 राइट हो गए, मतलब आई आई सॉल्व इट सो फास्ट, 15 सेकेंड्स। ये पूरा गेस वर्क था भाई, ये तीनों मेरे एकदम मतलब लकी गेसेस लग गए इधर। तो 2 इसके लिए क्या, मैंने एक तो यहाँ पे ये गड़बड़ था, इट्स नॉट ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू ए ग्रेटर देन, ए लेस देन और इक्वल टू ए लेस देन, ऐसे कुछ होना चाहिए, बट ये थोड़ा गड़बड़ लगा मेरे को, बट ठीक है। आई मार्क दिस बिकॉज क्यू ज़्यादा फास्ट है, बिकॉज क्यू इज फास्टर, अगर क्यू ज़्यादा टाइम काम करेगा तो इट विल बी बेटर, तो 10 मिनट्स तक पी ने काम किया, बाद में क्यू ने काम किया, तो क्यू ज़्यादा फास्ट काम करेगा, दैट्स व्हाई आई मार्क दिस एज द आंसर। यहाँ पे भी सेम चीज़, मतलब बड़े वाले नंबर पे 2:3 में डिवाइड किया है, तो 50% का गैप, तो 5% का कंपाउंड इंटरेस्ट से ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, दैट्स व्हाई सेड कि बिगर पार्ट में तुमको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो ज़्यादा बेटर होगा। पार्ट पार्ट 50% से ऊपर है ना, तो भले ही 5% से इंटरेस्ट कम है, डजंट मैटर, दैट इज व्हाट आई थॉट। एंड यहाँ पे दिस वाज प्योरली बिकॉज दिस इज 3/13 एंड पिक्चर इज 3/13, तो इसके दिस वाज द आंसर। तो ये हो गया, और क्या था अपने पास, VARC में देखते क्या गड़बड़ कर दिया, थर्ड वाला गलत हो गया। दिस वन वाज नाइस, आई सेव्ड माई सेल्फ, मतलब आई वुड हैव सेड प्रेजेंट इन अ रियर व्यू मिरर, मैं मिरर में देखता हूँ, इन ना मैं देखता हूँ, बट यहाँ पे लिया था, थ्रू दिया था कहीं पे, तो कहाँ गया, कहीं पे तो था, हाँ प्रेजेंट थ्रू अ रियर व्यू मिरर, तब यहाँ पे थ्रू दिया तो ऊपर भी थ्रू होना चाहिए, सेम ऑथर लिख रहा है, सेम चीज लिख रहा है, दो अलग अलग क्यों लिखे, दैट्स व्हाई आई गॉट दिस, आई सेव्ड माई सेल्फ, बच गया मैं। ये ठीक है, इसमें क्या गड़बड़ हो गया थर्ड में, ठीक है, ओनली ए नहीं है, तो क्या नन ऑफ दिस है, पता नहीं, आई डोंट नो। हाँ ठीक है, नॉट इक्वालिटी का स्पेलिंग ही गलत था, मिसस्पेल्ड या, दिस वाज फाइन, ये ठीक था, गड़बड़ कहाँ पे हो देखते, नरेटिव नहीं था, तो क्या था फिर, एक्सपोजिटरी भी नहीं हो सकता, कंटेंशियस भी नहीं हो सकता, आई डोंट नो व्हाट इट वाज, एक्सपोजिटरी, बट क्या एक्सपोज किया है, कुछ एक्सपोजर कुछ किया क्या बहुत, अच्छा लाइक दैट, ठीक है फाइन, पैथोस वाज फाइन। 11 में क्या कर दिया मैंने गड़बड़, ओनली सी कर दिया, देन बी एंड सी होगा, तो वो उसका को ऑथर नहीं है करके बोला होगा शायद, ई, या यहाँ पे क्या है, इज और आर नॉट कंसिडर्ड,
तो नहीं था क्या ये वाला? ए और सी था क्या? ऑप्शन डी देन, पता नहीं। बी एंड सी। ओ ठीक है। ओके 13 इज फाइन। 15 देखते क्या हो गया। ए एंड सी नहीं था। हाँ तो फोर्स वाला सी नहीं होना चाहिए फिर, देन इट्स ओनली ए मेरे हिसाब से, या। तो दैट फोर्स अस टू लिविंग विद देम है ना, दैट वाज इवन समथिंग दैट आई थॉट ड्यूरिंग द टेस्ट एज वेल। अग्री। 25 में क्या हो गया? ओ ये गलत हो गया। तो सी बी शुड हैव बीन द लिंक। तो फिर ये या ये में से कुछ होगा, सी बी ए डी। सी बी ए डी तो नहीं होना चाहिए, ए डी सी बी होना चाहिए, फिर ऑप्शन ई होगा आंसर। ए डी। Oh, nice, 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 nice. Little remember today, and that is not surprising. Many people sweep away, didn't read it properly. नहीं पढ़ा मैंने ठीक से, नहीं पढ़ा। ये तो पूरा ही गलत हो गया ना, सब लाइन से गलत हो गए सब ये। What was the answer that I got? D B C A E F G। क्या टॉपिक है, सॉरी? D G B F E। D G B F E A। पूरा ही गलत हो गया। ठीक है चलो, इफ एनीबडी गॉट दिस राइट, कुडोस। बट समझ में नहीं आया मेरे को ये। पता नहीं, ओपनिंग सेंटेंस तो फिर भी ठीक था। I took some time here, right? I took a lot of time here. 231 यार, ठीक है यार, 231 इज नॉट बैड। मतलब उससे कम क्या ही टाइम लेते। 36 देखते हैं। वो केयरलेस नहीं है। हाँ देन मे बी इनसबऑर्डिनेट। इनसबऑर्डिनेट वाज अ गुड वन यार। नाइस नाइस। इनसबऑर्डिनेट नहीं पढ़ा मैंने, ठीक से नहीं पढ़ा। ये तो ओके। 42 में क्या हुआ? ये फिर से मेरा कुछ तो गड़बड़ हो गया था। ए ई डी बी सी बोला था मैं। व्हाट आर दे सेइंग? ई ए डी बी। ओ ठीक है फाइन चलो। अग्री टू डिसअग्री। 46 क्या हो गया? गॉसिप मॉन्गर बोल सकते हैं, क्लेप्टोमेनियक। अच्छा मेंडेशियस का मेरा शायद मेरा वो गलत हो गया। मेंडेशियस इज नॉट टेलिंग द ट्रूथ। सॉरी। ऑल एक्सेप्ट ए। ट्रेजनस नहीं है, ट्रेजन नहीं करा ना वो। हाँ ट्रेजन इज अगेंस्ट कंट्री एंड ऑल, सी आई डिडंट सी। ठीक है। एंड लास्ट वन इज दिस वन। पहला ही गलत कर दिया। आई डोंट नो दिस वन रॉन्ग। ये कैसे गलत हो गया? फोर सीम टू बी ऑब्वियसली रॉन्ग टू मी। फाइव फाइव कैसे? मिरर इमेज, वाटर इमेज। सब जगह मिरर इमेज वाटर इमेज था। टॉप एलिमेंट इज वाटर इमेज, बॉटम एलिमेंट इज मिरर इमेज। अब यहाँ पे ये जो है, इसको मैं वाटर इमेज बोल सकता हूँ, चलो अग्री। बट ये मिरर इमेज है क्या? हाँ तो मिरर इमेज है, करेक्ट। ओ आई डिडंट सी दिस प्रॉपर्ली, मैं इसको वाटर इमेज करने बैठा था। ठीक। अंडरस्टूड। ठीक है ठीक है, आई मिस दिस। 10th में क्या गड़बड़ हो गया? ये तो ठीक था, इसमें क्या गड़बड़ कर दिया मैंने? दीज टू शुड हैव बीन एट द एक्सट्रीम, 1 एंड 3 एक्सट्रीम होना चाहिए था। अच्छा ये ऑप्शन भी था, आई डिडंट सी दिस ऑप्शन। देन ई आंसर होना चाहिए। 1 2 5 4 3, ये तो गड़बड़ हो गया ना। आई शुड हैव गॉन फॉर 1 4 2 5 3। सिली मिस्टेक है ये, बहुत ही फालतू मिस्टेक है ये। 12th। ये पता नहीं, समझ में नहीं आया, आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन वाज ट्राइंग टू से। ऑल फिगर्स हैज सिमेट्री अबव अलोंग द वर्टिकल एक्सिस। अरे रे रे रे, वो देखा ही नहीं मैंने। आई जस्ट काउंटेड नंबर ऑफ डॉट्स एंड नंबर ऑफ डैशेस। ठीक। ये भी कुछ समझ में ही नहीं आया वो खास ऑनेस्टली।
Number of squares in the top row, number of circles in the middle row, and the number of triangles in the bottom row reduced by 1. Okay. So 4, 4, 4. Okay. So 1, 4. ये होना चाहिए 1 4 2 5 ये होना चाहिए. I didn't see that. ये भी देख सकता था ना 5 4 3 2 1. I could have seen this. I didn't see. ठीक है तो गलत तो नहीं हुआ कुछ. नहीं, there is nothing else wrong. ठीक है, fine, fair enough. So this is basically what things look like in general, and this is how you can make mistakes when you are solving the test. So make sure that you are not making these mistakes. Yeah, end of the day, see, I would have been very happy with, as I said, 135 के ऊपर अगर जाता, I would have been, I'm happy now. ऐसा नहीं कि I'm sad or something. But अगर 130 135 के ऊपर जाता तो फिर it would have been an even happy experience for me. But ये सब चीज़ें होंगी. I can only blame a couple of decisions that I made during the test. One was वो LR के सेट में मैंने बहुत टाइम पास किया, ठीक है. But I made a comeback using verbal. तो वहाँ पे मैं आगे था. I was still ahead of where I wanted to be when 40 minutes were left and quant was left. But then I did another disaster. मैं थोड़ा सा slow हो गया बीच में, and I maybe wasted time solving some questions which I should not have, and that I think led to थोड़ा सा disaster. But ठीक है, what happens happens. 130 is fine. It's a good score in this test, I think. I don't know what the topper list looks like. I'll just see if I can find something. But I'm happy with 130. 130 ठीक है, with the commentary and everything. I think it's a good score. So let me know in the comment section, what do you think? What was your score in this particular test, and what do you think you could have done differently? या कहीं पे you think that I could have done a better job? So let me know in the comment section below, and I'll see you again in the next video. Also, again to reiterate, I didn't tell you about this during the test, but the recordings of all the sessions are available for 1,999 rupees, and we have only 4 logins left for the test plus recording wala course. तो वहाँ पे whoever wants to sign up as soon as you can, नहीं तो 4 exhaust हो जाएंगे जल्दी से, ठीक है. So and there is a special session that is coming up next week. Let me know what you think is the session about and who is the speaker. We have put up a shot, उसके अंदर मेरे को बता देना what do you think is your expectation from this session, या who do you think is going to feature in that session, and we'll see who it is. ठीक है, चलो. So on that note, I'll close the session. Thank you everyone for turning up. I hope it was a fun session. It was useful to all of you, and I'll see you again in the next video. Till then, keep preparing for the CET. All right, chalo. Bye everyone.